आपका उद्बोधन आज सुनने का सौभाग्य मिला। हाँ, अच्छा रहा। आप तो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलेंगे कि हिंदी अंग्रेजी ज्यादा रहेगी, हिंदी ज्यादा रहेगी भाई? आज हिंदी में बोलता हूँ आज। चलिए चलिए, अब हिंदी दिवस भी आ रहा भाई। उपेंद्र जी नमस्कार। 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 नमस्कार सर। नमस्कार त्रिपाठी जी नमस्कार। सर आप पीपीटी शेयर कर लीजिए, अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। हो गया फुल स्क्रीन? हाँ जी सर। हाँ, और एक बार फिर मूव करके देखता हूँ। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, हो गया ना? सर अभी फर्स्ट स्लाइड ही आ रही है। हाँ जी सर, अब हो गई। हो गया ना? हाँ ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी ठीक। A very good afternoon to respected dignitaries, governing body, members of RAV, Director RAV, Dr. Vandana Siroha ma'am, Gurujans. I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. Today's guest speaker is Professor Vaidya Upender Dikshit sir, CRAV Guru, Chief Consultant Dikshit Ayurveda Goa, who has joined us today in the 226th episode of this knowledge voyage. I, Dr. Himanshu, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. On the onset, we would also like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for sustenance of this series. Respected Vaidya Shri Devendra Trigunaji, President of GB RAV. Respected Vaidya Shri Rajesh Kotesa sir, Secretary, Ministry of Ayush. Respected Dr. Vandana Siroha ma'am, Director RAV. Let us begin the session by seeking the blessings of Bhagwan Dhanvantri. Now, I would like to introduce today's expert, Professor Vaidya Upender Dikshit sir, who is going to throw light on topic concept of Agni, Bhutagni, Dhatwagni, and clinical applications. It is my great honor to welcome Professor Vaidya Upender Dikshit sir, an eminent Ayurveda scholar, clinician, and teacher of national repute. Currently serving as Rashtriya Ayurveda Guru, Professor Dikshit has contributed immensely to Ayurveda as a chief consultant at Dikshit Ayurveda Goa with over 30 years of clinical excellence and vast teaching experience spanning 24 years at UG and 10 years at PG level. With 3 books, 50 plus scientific articles, and more than 214 guest lectures, including international platforms like University of Central Florida, USA, Professor Dikshit has significantly advanced the global understanding of Ayurveda. His outstanding contributions have been recognized with numerous prestigious awards, including the Dhanvantri Award, Hariom Gold Medal, Sandhu Ayurveda Bhushan, and Gamma Legion Award. Now, I would like to invite Sir to proceed with the lecture. And please, there is one announcement. I request all the participants to kindly switch off their mic and cameras. Please. Please, sir, now you can start your lecture. Yes. आदरणीय पद्मश्री पद्मभूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणाजी, डायरेक्टर डॉक्टर वंदना सिरोहा मैडम, सभी आदरणीय गुरु और शिष्य गण, सबको मेरा प्रणाम। आज का विषय मैं हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। जो अग्नि, धात्वग्नि, भूताग्नि, इनकी संकल्पना और इनका क्लिनिकली कैसे इसका उपयोग किया जाता है, उसके कुछ उदाहरण के रूप में कुछ केसेस, ये आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले अग्नि जो शब्द है,
ये शब्द ही बहुत विशेष शब्द है, ये अर्थपूर्ण शब्द है। ये जो यास्ककृत निरुक्त है, इसमें निरुक्तियां दी जाती है हर शब्द की। तो इसमें इसकी ये निरुक्ति दी गई है अग्नि की कि अ से आयति आता है, जो जिसका आगमन होता है। ग से ये होता है कि वो प्रकट करता है, अपने रूपों को प्रकट करता है और परिणमन करता है, पाचन करता है। और नी से ये मतलब है कि वो हवि जो है, मतलब जो आहुतियां हैं हमने यज्ञ में जो चढ़ाई है, उनको देवों तक पहुंचाने के लिए ले जाता है। तो ये अग और नी, ये इन शब्दों से ये सूचित किया गया है। तो इस प्रकार से ये अर्थपूर्ण शब्द है। तो ये अग्नि इतना महत्वपूर्ण विषय है कि दुनिया का सबसे प्राचीन वाङ्मय है ऋग्वेद, और इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम अध्याय में सबसे पहला जो सूक्त है वो वही शुरू होता है अग्नि शब्द से, ओम अग्नि मिळे पुरोहितम। तो यहां से शुरुआत होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अग्नि का महत्व कितना ज्यादा है। अग्नि के विषय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेदों में काफी विस्तृत हमें जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में 1561 संदर्भ मिलते हैं। ये जो सूची है, ऋग्वेद की एक सूची उपलब्ध है, उसके आधार पर ये आंकड़े मिले हैं। और यजुर्वेद में 1011 संदर्भ अग्नि के विषय में उपलब्ध है। तो एक बार एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक किसी व्यक्ति ने लिखा कि ये वेदों के संदर्भ क्यों दिए जाते, इसका क्या उपयोग है? ये तो इतिहास के लिए ठीक है, इसका आज के जमाने में क्या उपयोग है? तो ऐसा नहीं है। ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ आज भी हमें सीधा चिकित्सा में जिसका उपयोग हो सकता है, इस प्रकार के मार्गदर्शन देने वाले ये सब संदर्भ है। तो इसका उदाहरण भी मैं आगे दे दूंगा। जैसे अग्नि के विषय में जो अलग अलग सूक्त है, उनमें से एक सूक्त में ये कहा गया है कि जो रस है उसको, मतलब अन्न है जो उसका पाक करके उसको रस में परिणमित करना और रस को परिणत करके शुक्र तक उसका परिणमन करना, ये अग्नि का काम है। और इसलिए जो रेतस है, मतलब जो शुक्र है, उसकी उत्पत्ति में अग्नि का इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं उनमें भी हमें अग्नि का विचार करना आवश्यक होता है। ये इससे हमें समझ में आता है कि अग्नि ठीक न होने के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, शुक्र का निर्माण ठीक से नहीं होता है, ऐसा हो सकता है। अब ये दूसरा एक संदर्भ है, इसमें यह बताया गया है कि जो अग्नि है वही जो योनि में निषिक्त शुक्र है उसको परिणत करके गर्भ में रूपांतरित करता है, ये इसमें दिया गया है। तो जो गर्भ का उत्पादन है उसमें भी अग्नि का महत्व है, ये इससे सूचित किया गया है। तो इसलिए इसमें भी हमें अग्नि का विचार करना आवश्यक है। अब ये एक संदर्भ है तीसरा। तो इसमें यह कहा गया है कि गर्भ में जो प्रविष्ट शुक्र है इसको नृपाश्वादि देहाकारेण परिणमयति। तो देह का विशिष्ट परिणमन करना ये अग्नि का काम बताया गया है। और नीचे ये बताया गया है कि तस्माद अयम साक्षात एवं उत्पादका। तो सीधा सीधा संबंध है इसका, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध है, सीधा संबंध है। तो ये जो गर्भ का आकार बनता है उसमें भी अग्नि का संबंध है। तो इसलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो कंजेनाइटल एनोमलीज उत्पन्न होते हैं अलग अलग गर्भ में, इसको अगर टालना है तो उसके लिए भी अग्नि का विचार करना आवश्यक है। तो ये भी इससे सूचित होता है। तो इस प्रकार से कितने अच्छे मार्गदर्शक सूत्र हमें इस वैदिक संदर्भों से मिलते हैं, ये आप समझ सकते हैं सभी। अब आगे इसमें यह दिया गया है, और आगे संदर्भ है वेदों में कि अनेक संदर्भ ऐसे है, 2-3 संदर्भ ऐसे कम से कम आए हैं ऋग्वेद में कि जिसमें यह कहा गया है कि अग्नि जो है वो वाचा का शब्द की, अग्निर्हि शब्दम उत्पादयति। अग्नि शब्द की उत्पत्ति मतलब वाचा की उत्पत्ति, वाणी की उत्पत्ति करना, यह अग्नि का काम है। और इसके संदर्भ में यह सायण भाष्य में पाणिनीय शिक्षा का श्लोक उद्धृत किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि मन कायाग्नि महांति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरस्य चरण मंद्रम जनयति स्वरम। तो जो इसमें 3 फैक्टर्स को महत्वपूर्ण बताया गया है कि मन और मन का परिणाम मन और कायाग्नि का परिणाम होता है उसका, मतलब देहाग्नि पर, और उसका परिणाम वात पर होता है। और वात जो है वो अपनी गति से फिर स्वर की उत्पत्ति करता है। तो इसलिए जो बच्चे बोलते नहीं है या उनमें, या जिनकी वाचा स्पष्ट नहीं है उनमें इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इस संकल्पना का
तो इसमें अग्नि का भी बहुत बड़ा महत्व है। अग्नि को ठीक करने से भी वाचा अच्छी हो सकती है, या जिसके जो अटक कर बोलते हैं, मतलब सन्न सक्त, इस प्रकार की वाचा होती है, उसमें भी अग्नि का विचार करना भी आवश्यक होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो दिया गया है कि मन और वायु, इनका विचार करना ये भी आवश्यक है, क्योंकि वायु भी उसमें है, ये भी है। तो इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये अगर हम समझ पाते हैं तो हम लोग इसके अनुसार चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये एक अत्यंत आवश्यक विचार है। और इस प्रकार से विचार करके अनेक बच्चों में जो नहीं बोलते थे वो बोलने लगे। इस प्रकार के उदाहरण है, जो 4 साल के हो गए, 5 साल लगभग होने को आए, फिर भी नहीं बोल रहे थे, वो भी बोलने लगे। और जो ऐसे भी केसेस हो गए कि जिसमें उस बच्चे को ये समझा गया कि ये तो रिटार्डेड है, क्योंकि बोलता नहीं था इसलिए। तो ये बाद में फिर बोलने लगा और नॉर्मल स्कूल में जाकर, अब ये तो बहुत कुछ केसेस तो बहुत पुराने हैं, मतलब अब वो ग्रेजुएट हो गई वो लड़की जो नहीं बोलती थी। तो इस प्रकार से इसमें फायदा हो सकता है। अब इसमें और एक बात है, जो एक अलग बात है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे लोग होते हैं कि जिनको विशिष्ट वर्ण का उच्चारण करना नहीं आता। तो उसके लिए जो पाणिनीय व्याकरण में उनके ऋतु रसायनम मूर्धा वगैरह ऐसे जो उच्चारण स्थान दिए गए हैं, उनका विचार करना चाहिए, और उनके संबंध में कौन से धातु है, उन धातुओं की चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा विचार हमारे गुरु वैद्य चूड़ामणि कोल्हटकर सर, इनका विचार था, और उसके आधार पर अनेक लोगों को उस प्रकार की चिकित्सा से लाभ मिलने के भी उदाहरण हैं। तो एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि जो एक 2010 में एक 41 वर्ष का एक रुग्ण आया था, जो ड्राइवर था पेशे से, और उनकी कंप्लेंट ये थी कि सख्त वाक, मतलब बोलने में अटकते थे और अस्पष्ट उनके शब्द उच्चारण समझ में नहीं आते थे, और धीरे धीरे पिछले 10 महीने से लक्षण वृद्धि हो रही थी। अब इसके साथ साथ जो लक्षण मिल रहे थे उसमें वारंवार आस्य श्रवण, भोजनोत्तर हिक्का। तो इससे जो प्राणवायु है उसकी विकृति भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि भोजन के समय निगलते समय हिक्का उत्पन्न हो रही थी। और यहाँ पे कटु विदाही सेवन पर अम्लिका उत्कंठ दाह, तो इसलिए अग्निमंद है, विदग्धाजीर्ण बार बार हो रहा है, और अम्लपित्त भी हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति। तो और अब अग्नि जब मंद है तो उसके कारण पहला रस धातु जो उसके ऊपर परिणाम होता है, और साम रस उत्पन्न होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला विकृत कफ अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है, इसलिए वारंवार प्रतिष्ठा उत्पन्न होता था उसको। और इसी के साथ साथ विकृत कफ की उत्पत्ति के कारण और जो अजीर्ण के कारण बाद में आधमान उदावर्तन होता है, उसके कारण कंठशूल, बोलते समय अटकना, इस प्रकार से होता था। पानी पीते समय भी गले में अवरोध है, इस प्रकार की संवेदना आती थी। तो ये सारे लक्षण थे। और इसके साथ साथ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि फिर धीरे धीरे ये रसदुष्टि अगर होती है तो पांडु उत्पन्न हो जाता है। तो ये पांडु के कारण कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण शिराओं के दौर्बल्य के कारण पिपीलिका संचरण जैसी संवेदना, मतलब चींटियां रेंगने जैसी संवेदना, ये शिराओं से संबंधित लक्षण है। तो इसलिए इस प्रकार की संवेदना भी यहाँ पे उत्पन्न हो गई थी। और जो आस्य श्रवण है ये कृमि के लक्षणों में दिया गया है, तो इसलिए कृमि का भी संबंध यहाँ पर था। अब हमने आयुर्वेद की दृष्टि से क्या विचार किया जा सकता है ये देखा, लेकिन मॉडर्न डायग्नोसिस उनका ये था कि बल्बर एंड स्यूडोबल्बर पाल्सी, पॉसिबली मोटर न्यूरॉन डिसीज, इस प्रकार से डायग्नोसिस किया गया था उनका। तो यही मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो शिष्य है, विद्यार्थी है जुड़े हुए, उनसे यही बताने का प्रयास है कि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि भाई चलो मोटर न्यूरॉन पर काम करने वाले हमारे पास कौन सी औषधियां हैं, तो ये शायद सही चिकित्सा नहीं होगी। तो हमें आयुर्वेद की दृष्टि से इस केस को समझना चाहिए। तो हमने आयुर्वेद की दृष्टि से इसका विश्लेषण कर लिया। ये उनके डिस्चार्ज पेपर्स थे हॉस्पिटल के, उसके जो उसमें जो लिखा था वो तो मैंने हाईलाइट करके दिखाई दिया। अब परीक्षण में उदान और समान की नाड़ी, उदान स्वर की उत्पत्ति से संबंधित उदान है, भाषण से संबंधित, इसलिए समान, और जो पचन की विकृतियां थी उसलिए समान की नाड़ी मिल रही थी। और जिह्वा पर बहल भस्वर्ण उपलेप जो है, उसका अर्थ ये होता है कि जिह्वा परीक्षण से भी काफी चीजें समझ में आती है। तो इसमें यह समझ में आता है कि लंबे समय से अजीर्ण उत्पन्न हो रहा है और साम दोष शरीर में बड़ी मात्रा में संचित है, ये इससे समझ में आ रहा है। और अल्प प्रत्यात्मान, नाभि के ऊपर जब आत्मान होता है तो उसको प्रत्यात्मान कहते हैं। और यकृत में पार्थिव ध्वनि मिल रहे थे, क्योंकि रस से आगे जाकर वो दोष रक्त में लीन हो जाते हैं, तो इसलिए यकृत के ध्वनि जो है
उसमें बदलाव आ जाता है। अब ये सब ध्यान में रखते हुए चिकित्सा क्या दी थी तब कि लघु मालिनी वसंत रस धात्वग्नि दीपन करने के लिए रसमाणिक्य और वासा और दारवी की, जिसके कारण कंठ पर काम होगा और जो गले में अटका हुआ कफ है वो निकलने में मदद मिलेगी, और जो हिक्का है उसके ऊपर भी परिणाम होगा। और आम पाचन करने के लिए यहाँ पे तिक्तरस द्रव्यों का उपयोग किया है, क्योंकि कृमि भी थे और विदग्ध अजीर्ण था, इसलिए पित्त शामक लेकिन आम पाचन करने वाले जो द्रव्य है उनका उपयोग किया गया है। और रक्त से आश्रित दोष भी पहुंचे, इसलिए रक्तपाचक इसमें मिला दिया गया है। और कृमियों के लक्षण थे, इसलिए इसमें कृमि कुठार कंपिल्लक के साथ प्रारंभ में दिया गया है। और वचा तैल का प्रतिमर्शन से दिया कि जिसके कारण वात की गति में जो अवरोध है कफ का वो दूर होगा और वात की गति ठीक होगी, और इसलिए वात की गति में सुधार आने से वाचा में भी सुधार आएगा। एक अमृत बिंदु मतलब थाइमोल, मेंथोल, कैंपर मतलब कर्पूर वगैरह उसमें होता है, तो उसको सूंघने के लिए दिया कि इससे भी गले में सूदिंग इफेक्ट आता है और अच्छा लगता है, तो इसलिए ये दिया था। अब आप देख सकते हैं कि जो अगले फॉलोअप में जब वो आ गए वापस, तो वाक अस्पष्टत्व काफी कम हो चुका था और बाकी लक्षण तो लगभग बंद ही हो गए थे उनके। और परीक्षण में भी बदलाव आ गया, अब समान की नाड़ी नहीं मिल रही थी और उपले कम हो चुका था, पार्थिव ध्वनि कम हो चुके थे, तो परीक्षण में भी बदलाव आ गए। इससे भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि गुरु लघु व्याधित होता है ना, तो इसलिए रुग्ण जो बता रहा है वही सब सही होता है ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें गुरु लघु व्याधित का विचार करना आवश्यकता होती है, इसलिए परीक्षणों के आधार पर हम लोग उसको निश्चित ही कर सकते हैं उन बातों की। तो अब बाद में उनको कुक्कुट नखी ऐड की गई, क्योंकि कुक्कुट नखी वात की गति को नियंत्रित करती है इसलिए, और मेद्य भी है, तो इसलिए उसको ऐड किया गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि आगे के फॉलोअप्स में ये देखा गया कि वाक अस्पष्टत्व और जो बाकी सारे सिम्टम्स थे वो सारे ठीक हो गए। अब ज्यादातर ऐसा होता है कि जब ठीक हो जाता है तो लोग बाद में फिर से रिपोर्ट निकालने के लिए बहुत तैयार नहीं रहते, इसलिए इनका आखिर में वो स्यूडोबल्बर पाल्सी में क्या हुआ ये मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो लाक्षणिक दृष्टि से उनको फायदा हुआ और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अग्नि के इसी महत्व को देखते हुए आयुर्वेद में भी अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। चरक संहिता में ये कहा गया है कि जो जैसे हम लोग यज्ञ करके आहुति देते हैं तो उससे जितना पुण्य मिलेगा, उसी प्रकार से जाठराग्नि को योग्य प्रकार के आहार की अगर आहुति दी जाए तो उससे भी उतना ही पुण्य मिलेगा, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो आहिदाग्नि ही मतलब जो नित्य अग्नि को आहुतियां देता है व्यक्ति, वैसे नित्य हम लोग आहुति देते ही है जाठराग्नि को, लेकिन वो पवित्र अग्नि है ऐसा समझकर योग्य अन्न की अगर हम लोग आहुति देते हैं तो फिर जो वही यज्ञ से जो पुण्य प्राप्त होता है वही हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। अब जो अग्नि की संकल्पना है उसको हम लोग वेदों के, उपनिषदों के और अनेक पुराणों के सारे संदर्भों को अगर देखते हैं और अनेक दर्शनों के, उसमें से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। तो उसमें से जो आयुर्वेद के लिए उपयोगी है इसलिए उनको यहाँ पे दिखाया गया। तो जैसे ये कहा गया है कि एक पर्याय जो है अमरकोश में दिए हुए, उसमें यह बताया गया है कि आश्रय आशाह, ऐसा पर्याय अग्नि को दिया गया, मतलब किसी आश्रय से वो प्रकट होता है अग्नि। तो इसलिए ये आश्रय कौन सा है, तो ज्यादातर ये आश्रय पृथ्वी होता है, क्योंकि अथर्ववेद में यह कहा गया कि अग्नि पृथिव्यावशी, तो ये पृथ्वी विशेष रूप से पृथ्वी के आधार पर यह अग्नि प्रकट होता है। और ये सारे विचार हमें चिकित्सा में उपयोगी है, इसलिए हम लोग इनको देख रहे हैं। अब ऐसे ही वेदों में 3 जगह ऐसा रेफरेंस आया है कि जो अग्नि है वो एक कहानी बताई गई है प्रतीकात्मक, जिसमें ये कहा गया कि अग्नि भाग गया और अग्नि जाके आप में छुप गया, मतलब जल में छुप गया। और इसके कारण जैसे पशु के गात्र संकुचित होते इस ठंड के कारण, इस प्रकार से ये अग्नि के गात्र संकुचित हो गए और संकुचित गात्र होकर बाद में जब ये अग्नि आपसे बाहर निकला तो वो काफी बलवान होकर बाहर निकला। इस प्रकार का जो उल्लेख है ये 3 ऋचाओं में ऋग्वेद की कहा गया है इस बात को। तो इससे ये समझ में आता है कि आपके आवरण से जब अग्नि प्रकट होता है तो वो और ज्यादा बलवान होकर बाहर निकलता है। ये संकल्पना हमें समझ में आती है। अब इसी संकल्पना को हम अनेक जगह पर इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि शरद ऋतु में क्यों पित्त प्रकोप ज्यादा होता है, क्योंकि शरद ऋतु में क्यों ज्यादा सबसे उष्मा से होने वाली तकलीफें होती है, वो इसलिए क्योंकि वर्षा ऋतु में जो पानी बरस रहा है तो जो आप महाभूत प्रधान बन गया उसमें, तो आप महाभूत के आवरण से जब अग्नि बाहर निकलता है तो वो और ज्यादा बलवान होकर निकलता है, इसलिए शरद ऋतु में उष्मा से होने वाली जो तकलीफें हैं वो ज्यादा होती है, ये हम देख सकते हैं।
इसी प्रकार से ये हमने लवण रस ये सबसे ज्यादा उष्ण है, क्योंकि लवण रस में भी आप के आवरण से अग्नि प्रकट होता है। यहाँ पे आप और अग्नि का संयोग है, इसलिए आपके आवरण से अग्नि प्रकट होता है, इसलिए वो और ज्यादा बलवान होकर बाहर निकलता है। तो इस प्रकार हम इन बातों को समझ सकते थे, इसलिए ये जो वेदों के रेफरेंसेस है वो बहुत ही उपयोगी है। तो यही 3 जगह ये रेफरेंस आया है। अब इसी को हम लोग समझते हैं कि शरीर के अंतर्गत जो अग्नि है, वो शरीर में अग्नि किस प्रकार से है, तो अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गतः। तो इसलिए टीकाओं में ये बताया गया है, चक्रपाणी टीका में, कि पित्तांतर्गत ये शब्द से ये सूचित किया गया है कि बाह्य ज्वालादि रूप वन्नी निषेध। बाह्य ज्वालादि रूप वन्नी जो है, ज्वाला प्रकट होती है, इस प्रकार का अग्नि शरीर में नहीं है। तो वो है कैसा, तो पित्तांतर्गत अग्नि है। तो इसलिए पित्त जो है वो आग्नेय भाव में भी उसका वर्णन है और आप्य भाव में भी उसका वर्णन है। तो आग्नेय भाव में उसका वर्णन है, इसलिए अग्नि का आश्रय बनने के लिए वो योग्य स्थान है। लेकिन वो केवल आग्नेय भाव नहीं है, वो आप्य भाव भी है, उसमें आप महाभूत का भी अंश है, और इसलिए वो आप महाभूत का अंश होने के कारण अग्नि को नियंत्रित रखता है शरीर में। तो इसलिए जब ये आप्यांश जो है वो जब कम किया जाता है, उसको जब कम किया जाता है, तब अग्नि बलवान होकर बाहर निकलता है। क्योंकि आपके आवरण से जब अग्नि निकलता है तो बलवान होता है ना, तो अग्नि और बलवान होकर बाहर निकलता है और अपने कार्य के लिए समर्थ हो जाता है। इसलिए त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम। जब द्रवत्व कम किया जाता है तो अग्नि के गुण बढ़ जाता है, अग्नि और प्रबल होकर बाहर निकलता है और तब अपने अग्नि के कार्य दिखाने लगता है। और इसी बात को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। जैसे भेल संहिता में ये कहा गया है कि नाभि में सोम मंडल होता है और सोम मंडल के अंतर्गत सूर्य मंडल होता है, मतलब आपके आवरण में अग्नि को रखा गया है, ये सूचित किया गया है, इसलिए पित्तांतर्गत अग्नि ये संकल्पना बताई गई है। तो अब ये जो प्रश्न है ये विद्यार्थी जानते होंगे। मेरे तो फर्स्ट बीएमएस से लेकर सेकंड एमडी तक हर एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछा गया कि अग्नि और पित्त में साम्य और भेद, इसको स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि अग्नि पित्त के आश्रय से होता है, तो पित्तांतर्गत अग्नि होता है। अब कुछ लोग इसके लिए सुश्रुत संहिता का संदर्भ देते हैं कि नहीं पित्त व्यतिरेकात अन्य अग्नि उपलभ्यते। तो उस संदर्भ में भी ये नहीं कहा गया है कि अग्नि और पित्त भिन्न है, अग्नि और पित्त एक है, ये नहीं कहा गया है उसमें। उसमें ये कहा गया है कि नहीं पित्त व्यतिरेकात अन्य अग्नि उपलभ्यते। तो उपलब्धि, अग्नि की उपलब्धि हमेशा पित्त में ही होती है, ये उसमें कहा गया है। कि तो एक व्यक्ति एक घर में रहता है, तो अगर उस व्यक्ति को ढूंढना है तो इस घर में मिलेगा वो व्यक्ति। ये हम जब कहते हैं तो वो व्यक्ति और घर एक ही नहीं है, वो व्यक्ति घर में रह रहा है, उस व्यक्ति का ये घर है, इसलिए हमेशा वही मिलेगा। उस व्यक्ति को कुछ पहुंचाना है, हमें कोई पार्सल पहुंचाना है, तो उस घर में पहुंचाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये पित्तांतर्गत अग्नि है, इसलिए अग्नि को अगर ढूंढना है तो पित्त के अंतर्गत ही मिलेगा, और अग्नि पर हमें अगर चिकित्सा करनी है तो पित्त के माध्यम से करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे बताया गया। तो पित्तो उष्मा, तो इस भाव प्रकाश में स्पष्ट किया गया है कि यहाँ उष्म पदे न अग्नि उच्चते। तो उष्मा अग्नि है, लेकिन वो रहता है पित्त में, पित्त के एक अंश के रूप में। इसलिए चक्रपाणी टीका सुश्रुत संहिता पर जो है उसमें यह बताया गया है कि तेजः पित्त अवयव रूपम, पित्त के एक अवयव के रूप में, एक हिस्से के रूप में वो पित्त के अंतर्गत अग्नि रहता है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए भाव प्रकाश में जो ये दिया है ना, अग्नि और पित्त के साम्य भेद, इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात है। तो इसलिए संक्षेप में क्या है कि अग्नि को पित्तोष्मा ये बताया गया है अग्नि को। इसलिए हम लोग सिंप्लीफाइड करके उसको सरलता से विद्यार्थियों के लिए समझ सकते हैं कि पित्त प्लस उष्मा, इस तरह से समझ सकते हैं। उष्मा कंटेंट इन पित्त, जो पित्तांतर्गत उष्मा है। अब यहाँ हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उष्मा जो है वो जो बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से अलग अलग, उसके लिए आवश्यक एनर्जी जो है वो उष्मा है। और लेकिन ये बायोकेमिकल अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं उसके लिए जितनी एनर्जी आवश्यक है उतनी एक्चुअली उसकी उतनी एनर्जी अगर शरीर में अगर तैयार की जाए तो वो इतनी कभी कभी आवश्यकता होती है कि उसमें देह धातु वो जल सकते हैं उससे। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में तो एनर्जी तैयार नहीं होती, क्योंकि पित्तांतर्गत है। वो पित्त अलग अलग प्रकार से क्या ऐसे केमिकल्स है सारे कि जो इस बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मदद करते हैं। इसलिए एनर्जी की आवश्यकता कम पड़ती है। इसलिए तो इसलिए ये पित्त और अग्नि ये दोनों मिलकर एक प्रकार से एक फंक्शनल यूनिट तैयार होता है। तो ये दोनों मिलकर ये पचन का काम अच्छी तरह से कर लेते हैं, और अधिक भी नहीं करते, क्योंकि ये जो आप्यांश कम किया गया है
बाद में जब पचन का काम पूरा होता है तो फिर से ये आप्यांश बढ़ जाता है, सोम मंडल फिर से अग्नि मंडल को आवृत कर लेता है और इसलिए अग्नि के कामों को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए अग्नि प्रदीप्त होना और फिर किंचित मंद होना ये चलता रहता है हमेशा और ये नॉर्मल है। अब पूरी सृष्टि में अगर हम लोग देखते हैं तो पूरी सृष्टि जो है सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थ है, ऐसा आयुर्वेद ने कहा है। तो पूरी सृष्टि में हर द्रव्य पंचमहाभूतों से बना हुआ है, इसलिए हर द्रव्य में अग्नि का अंश है, इसलिए हर द्रव्य के हर कण में अग्नि का अंश है और ये जो अग्नि का अंश है यही है भूताग्नि। तो भूताग्नि जो है वो हर कण कण में विद्यमान है, हर पांचभौतिक वस्तु में भूताग्नि विद्यमान है, तो हर कण कण में विद्यमान है। इसलिए भूताग्नि जो है, हम लोग इसकी चर्चा आगे और करने वाले हैं, भूताग्नि जो है वो बाह्य सृष्टि में भी है, शरीर में भी है, तो भूताग्नि सब जगह विद्यमान है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। तो वही अग्नि पूरे भुवन में प्रविष्ट है, पूरे त्रिभुवन में हर कण कण में वो प्रविष्ट है और वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। तो उसके अनेक रूप हो सकते हैं प्रकट होने के लिए, लेकिन वास्तव में वो सब एक ही अग्नि है। ये अनेक उपनिषदों में इस प्रकार का संदर्भ आया, कठोपनिषद, बृहद जाबालोपनिषद वगैरह। तो अब ये बताया गया है कि भौम्याप्या आग्नेय वायव्या पंचोष्माणासनमसा भूताग्नियों के बारे में ये कहा गया, पंचाहार गुणान स्वान स्वान पार्थिवादीन पचंती ही। अब इसकी टीका में ये कहा गया है कि ये भूताग्नि कहाँ पर होते हैं। तो ये जो कई आधुनिक जो लेखक है उनका यकृत एक बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है, मतलब हर चीज को यकृत में डाल देते हैं वो। तो बोले भूताग्नि कहाँ होते हैं, तो यकृत में होते हैं, धात्वग्नि कहाँ होते हैं, तो यकृत में होते हैं। ऐसा नहीं है, जो ग्रंथोक्त संदर्भ है उनको देखना चाहिए। तो ग्रंथों में क्या कहा गया है कि पार्थिवादि द्रव्य व्यवस्थिता, वो हर द्रव्य में होते हैं। तो इसलिए हर कण में, शरीर का हर कण पंचमहाभूतों से बना है, इसलिए शरीर के हर कण कण में भूताग्नि है और बाह्य सृष्टि में भी भूताग्नि है। बाह्य सृष्टि में जो भूताग्नि है उनसे शरीर में जो भूताग्नि है वो अलग है, क्योंकि वो आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा के प्रभाव के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं जो बाह्य सृष्टि में नहीं देखा जाता। मतलब जिस प्रकार से बाह्य शरीर के अंतर्गत जो परिणमन देखे जाते हैं वैसे बाह्य सृष्टि में नहीं देखे जाते, इसलिए। लेकिन वो हर कण कण में विद्यमान है। तो यकृत ही क्यों भाई, हर शरीर के हर कण में है, यकृत में भी है, सही बात है, लेकिन सिर्फ यकृत में नहीं है। तो इसलिए भूताग्नि जो है वो हर जगह विद्यमान है। तो वो अपने अपने द्रव्यों का परिणमन करते रहते हैं। अंतरियम द्रव्यम पंचता स्वान स्वान पार्थिवादीन गुणान निर्वर्तयन्ति, और उस प्रकार से वो अपने अपने गुणों को, पार्थिवाग्नि है तो पृथ्वी के गुणों को प्रकट करता है, इस प्रकार से अपने अपने गुणों को वो प्रकट करते हैं। तो यथा स्वेन उष्मणा सम्यक विपच्यमानम, यहाँ पे भी ये कहा गया है सूत्र स्थान 28 में। तो जो जाठराग्नि के द्वारा बल संदुक्षित किया जाने के बाद भूताग्नि अपना काम करते हैं। तो यथा स्वेन उष्मणा मतलब भूताग्नि के द्वारा। तो भूताग्नि जाठराग्नि के द्वारा बल संदुक्षित करने के बाद भूताग्नि अपना काम करते हैं। मैं इसको और अच्छे से सरल शब्दों में समझाता हूं। तो जो बाह्य सृष्टि में जो वस्तु है उनमें भी भूताग्नि है, जैसे राइस जो चावल है उसमें भूताग्नि है, और उनके कारण क्या होता है कि चावल अगर 6 महीने रखा जाए तो वो लघु बनता है। तो लघु कैसे बनता है, क्योंकि उसमें जो भूताग्नि है वो अपना काम कर रहे हैं। सब्जी हमने एक पालक या जो भी है सब्जी हमने रख दी तो वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, सड़ जाती है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो भूताग्नि है वो अपना काम कर रहे हैं और वो विशिष्ट गति से अपना काम कर रहे हैं। इसलिए विशिष्ट काल में वो सब्जी खराब हो जाती है, वो क्योंकि उसका आगे परिणमन चलता रहता है। इसलिए इस प्रकार से ये परिणमन होता रहता है। अगर ये परिणमन हमें जल्दी करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अग्नि के किसी अन्य माध्यम के द्वारा, जैसे हम लोग चूल्हे पर उसको चढ़ा के उसको पानी डालकर उसको अग्नि देते हैं राइस को, तो हम लोग जो जितनी देर तक अग्नि देते हैं और जितने समय तक जितने मात्रा में अग्नि देते हैं उसके अनुसार हम लोग जो डिजायर डिफेक्ट है जो हमें जो हम चाहते हैं उस प्रकार का परिणमन हम उत्पन्न कर सकते हैं। यानी हम लोग जो चावल है उससे जो पका हुआ चावल हम लोग तैयार कर सकते हैं उससे। ये विशिष्ट परिणमन हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग जो अग्नि देते हैं उसके कारण जो चावल में जो भूताग्नि है वो प्रदीप्त होते हैं और वो उस चावल के कण को परिणमित करके जो पका हुआ चावल जो है, राइस जो है हमें मिल जाता है, हमें उसके कारण मिल जाता है। अब यही अगर हम लोग इस चावल को हम लोग अगर फ्रीज में रख देते हैं तो उसकी शैत्य के कारण
भूताग्नि मंद हो जाते हैं और इसके कारण ये परिणमन बहुत धीरे धीरे चलने लगता है और इसलिए कुछ देर तक ये टिका रहता है। लेकिन ये जब हम लोग खाते हैं हम लोग इसी चीज को, तो जाठराग्नि फिर से इन भूताग्नियों को प्रदीप्त करके भूताग्नियों की सहायता से ये परिणमन करके उसको आहार रस में परिणत करता है। तो अगर हमने फ्रिज में रखा हुआ है तो उसके भूताग्नि मंद कर दिया हमने, मतलब ये रेफ्रिजरेटर जो है वो भूताग्नि मांद्यकारक यंत्र है एक प्रकार का, ऐसा कहना चाहिए। तो ये इसमें जो रखी हुई चीजें हैं इनको जब हम खाते हैं तो शरीर के जाठराग्नि को उन भूताग्नियों को प्रदीप्त करने के लिए और ज्यादा अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और ज्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे, तब वो संदुक्षित होगा। इसलिए पचने में वो इतने आसान नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये सब भूताग्नि, अब ये भूताग्नि का काम मतलब जाठरेण अग्निना पूर्वम कृतम संघात वेदे पश्चात भूताग्नया स्वम स्वम द्रव्यम पचंती। तो इसलिए कुछ लोग क्या इसका अर्थ लेते हैं कि जाठराग्नि का काम पूरा हो गया उसके बाद में कहीं जाके भूताग्नि का काम शुरू होता है, ऐसा नहीं। जाठराग्नि के साथ साथ ही भूताग्नियों का काम पैरेलली चल रहा है, क्योंकि जाठराग्नि भूताग्नियों के द्वारा ये काम करवा रहा है जाठराग्नि। ये इसलिए ये बताया गया है कि ये बताया गया है अरुंधति टीका में और कई जगह कि जाठराग्नि ना भूत सहाय न पक्वा किट्ट सारता मियाति। तो जाठराग्नि भूताग्नियों की सहायता से ये अपना काम करता है। तो जाठराग्नि भूताग्नियों को संदुक्षित करके ये परिणमन करवाता है। इसलिए जाठराग्नि भूताग्नि सहायता से काम करते हैं। इसलिए जाठराग्नि का व्यापार और भूताग्नियों का व्यापार साथ साथ चलता है जब तक आहार रस में परिणमन नहीं हो जाता। और बाद में जब ये परिणमन हो जाता है तो फिर वो आहार रस पहुंचाया जाता है अलग अलग धातुओं तक। और इसलिए ये बताया गया है कि अयम च भूताग्नि व्यापारा धातुषु अपि अस्ति, क्योंकि धातु भी पांचभौतिक है। इसलिए धातुषु अपि पंचभूतानि सन्ति, धातु भी पांचभौतिक है और इसलिए धातुओं में भी भूताग्नि काम करते हैं, लेकिन उनका काम विशिष्ट होता है। रस धातुअग्नि में जो विशिष्ट भूताग्नि है वो विशिष्ट चीजों की उत्पत्ति, मतलब रस धातु की उत्पत्ति करते हैं, मल के रूप में कफ की उत्पत्ति करते हैं, उपधातु के रूप में रज और स्तन्य की उत्पत्ति करते हैं। तो विशिष्ट परिणमन ही वो करते हैं और इसलिए उन भूताग्नियों को एक विशिष्ट नाम प्रदान किया जाता है, वो है रस धातुअग्नि। तो इस प्रकार से जाठराग्नि धातुअग्नि जो है वो मूलतः भूताग्नि होते हैं, लेकिन विशिष्ट कार्य करने के कारण उनको नाम प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार से क्या स्तन्य का अपना अग्नि होता है? हाँ होता है ना, लेकिन उसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि रस धातुअग्नि की चिकित्सा करने से ही उसकी चिकित्सा ज्यादातर हो जाती है। तो जो कई ऐसे अग्नि है कि जिनका आयुर्वेद के ग्रंथों में नाम भी नहीं उल्लेखित किया गया है, क्योंकि वो भूताग्नियों के अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए जिनकी विशेष रूप से कार्य जिनके हमें प्रतीत होते हैं और जिनकी चिकित्सा करने की विशेष आवश्यकता पड़ती है, उनके नामों का उल्लेख किया गया ग्रंथों में, और बाकी भूताग्नियों में सम्मिलित है ही, इसलिए उनका स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया नहीं। तो जो धात्वग्नि है वो भी विशिष्ट प्रकार के भूताग्नि है और जाठराग्नि का काम भूताग्नियों के सहायता से होता है। और जब वो आहार रस फिर धातुओं में पहुंचता है तो फिर धात्वग्नि इन भूताग्नियों को संदुष्टित करके भूताग्नियों की सहायता से अपना परिणमन करके विशिष्ट धातुओं में उनको परिणमित करते हैं या विशिष्ट उपधातु और मलों में उसका परिणमन कर लेते हैं। तो इसलिए अब ये गुणों का परिणमन करते हैं और उसी प्रकार से इसलिए जाठराग्नि और धात्वग्नि इनका कार्य जो है वो भूताग्नि की सहायता से चलता है। तो पैरेलली ही चलता रहता है ये कार्य। ऐसा कहीं नहीं कि जाठराग्नि के होने के कारण वो आहार रस कहीं एक रिमोट प्लेस पे ले जाया जाता है और फिर वहां पे भूताग्नि काम करते हैं, ऐसा नहीं। भूताग्नियों का काम तो चलता ही रहता है। भूताग्नियों का काम शरीर के हर कण कण में सब जगह चलता ही रहता है, वो अविरत चलता रहता है। मृत्यु के बाद भी चलता रहता है, लेकिन अलग प्रकार से चलता है, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति न होने के कारण शरीर सड़ने लगता है, एक अलग प्रकार से भूताग्नियों का काम चलने लगता है। तो इस प्रकार से भूताग्नि शरीर में विद्यमान होते हैं और उनका काम चलता ही रहता है। आहार में भी भूताग्नि होते हैं और शरीर का जो अग्नि है वो उन भूताग्नियों को प्रभावित करके उनको विशिष्ट रूप से संदुक्षित करके उनसे विशिष्ट परिणमन करवाता है। तो इसलिए ये पैरेलली चलते रहते हैं इनके काम। इसलिए आहार के संस्कार का भी बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कि आहार को हम लोग विशिष्ट प्रकार से संस्कार करके हम लोग खाते हैं। तो हम लोग जो ये राइस जो कुकिंग करके हम लोग मतलब पक्व जो शाली है उसको हम लोग खाते हैं,
तो इसमें क्या किया हमने कि भूताग्नियों को पहले ही संदुक्षित करके फिर हम खा रहे हैं। तो जाठराग्नि का काम हमारे ज्यादा अच्छी तरह से होगा, जाठराग्नि का काम आसानी से होगा ऐसा करने से। तो इसलिए क्या होगा कि अगर मंद है भूताग्नि तो हमें जाठराग्नि को और काम करना पड़ेगा। इसलिए एक प्रकार से आज के जमाने के शब्दों में अगर कहना है तो बायो एक्टिवेटेड फूड हम लोग खा रहे हैं, मान लो हम लोग पाचन करके। और ये भारतीय जो कुकिंग है, आहार मतलब पचन की प्रक्रिया भारत में जो अपनाई जाती है उसमें इसका बहुत ज्यादा विचार किया गया है। इसमें ये सभी चीजों का विचार किया गया है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि किस प्रकार के द्रव्यों को, आहार द्रव्यों को कैसे पकाना है ये बताया गया है। तो उसके कारण उसके भूताग्नियों का काम भी ज्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। अब ये भी है कि कद्दू की सब्जी है उसमें मेथी डालते हैं, जो गवार की सब्जी है उसमें अजवाइन डालते हैं। तो किसमें कौन सा मसाला डालना ये भी तय है। तो उससे उसमें टेस्ट अच्छा आता है ये तो बात है ही, लेकिन उससे ये है कि उसमें जो धात्वग्नि भूताग्नि है उनका काम ज्यादा अच्छी तरह से होता है, उसमें उस द्रव्य का पाचन हो जाता है। तो वो उस द्रव्य के पाचन है वो जो हम लोग जो मसाले डाल रहे हैं, इसलिए उनका पाचन ज्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। ये उसका फायदा होता है। तो इसलिए आहार का संस्कार करके हम लोग भूताग्नियों की काम की सहायता कर रहे हैं और भूताग्नि के स्तर पर हम लोग पाचन करने में मदद कर रहे हैं। तो इसलिए कई बार मैं कहता हूँ मतलब विद्यार्थियों को मजाक से कि आपकी जो माताएं हैं वो भूताग्नियों के बारे में ज्यादा अच्छा जानती है, क्योंकि वो जानती है कि किसको कैसे पकाना है, तो उसके भूताग्नियों का कार्य कैसे ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए इस प्रकार से आहार को विशिष्ट संस्कार करने के कारण उसका पचन ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें भूताग्नियों को संदुक्षित किया जाता है, भूताग्नि स्तर का पाचन किया जा सकता है। अब इसी बात को हम लोग, ये भूताग्नियों का जो विचार है इसको हम लोग कई प्रकार से इसका उपयोजन कर सकते हैं। जैसे विशिष्ट द्रव्यों का ही अजीर्ण क्यों होता है, तो उनके उनके अंतर्गत जो उसका पचन नहीं होता उस द्रव्य का शरीर को, इसलिए उस द्रव्य से के कारण एलर्जी आजकल होती है, मतलब उससे एलर्जी होती है। मुझे गेहूं से ही एलर्जी होती है। तो इन विशिष्ट द्रव्यों का पाचन कैसे करना है, तो उसके लिए उसके पाचन के लिए कुछ विशिष्ट द्रव्य हमारे इसमें दिए हुए हैं। तो अजीर्ण मंजरी उदाहरण के रूप में ग्रंथ है पूरा, तो जिसमें ये पाचन द्रव्य दिए हुए हैं। तो ये द्रव्य जो है वो उसके भूताग्नियों का कार्य सुधार करके उस द्रव्य का पचन करने में सहायता करते हैं। और इसलिए उस द्रव्य का पचन जब होने लगता है तो उसका जो असहत्व है, मतलब जो उसकी जो एलर्जी है वो ठीक हो सकती है। एलर्जी ठीक होना ये आयुर्वेद में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, रूटीन बात है आयुर्वेद के लिए। तो एलर्जी के टेस्ट करना ये एलर्जी एक्सपर्ट्स का काम है, लेकिन ठीक होना ये आयुर्वेद के चिकित्सकों का काम है, उसको ठीक करना। क्योंकि आयुर्वेद में हम लोग इस प्रकार से विचार करके उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विशिष्ट द्रव्यों के अजीर्ण को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से दिया गया है। जैसे केले के पचन के लिए एला उसका पचन के लिए उपयोग करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से हमें उपयोग करके उसका परिणाम देखना चाहिए और उसका लाभ रोगियों को देना चाहिए। इसके अलावा भी और जगह पे ऐसे उल्लेख है, जैसे रसतरंगिणी में दूध जिनको पचन नहीं होता उनके लिए एक विशिष्ट योग बताया गया है उनको, तो उसके कारण दूध का पाचन होता है। और उनका, आप ये रसतरंगिणी के ग्रंथकार ये बहुत बड़े चिकित्सक थे, आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि उन्होंने ये कहा गया कि ये जो योग है ये दूध के अनुपान के साथ ही देना है, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब उनको पक्का पता है कि इससे दूध का पचन होगा, इसलिए दूध के अनुपान के साथ ही देने के लिए कहा है उन्होंने उसको। तो इस प्रकार से विशिष्ट द्रव्यों का पाचन करने के लिए हमारे पास जो द्रव्य है वो उन भूताग्नियों के स्तर पर, उन भूताग्नियों का दीपन और उन भूताग्नियों के स्तर पर पाचन, ये काम करके उस द्रव्य का परिणमन शरीर में ज्यादा अच्छा हो, इसके लिए सहायक बनते हैं। अब जो अलग अलग धातु और अवयव है इनका परस्पर संबंध जो है वो हम लोग, जैसे पार्थिव अंश है तो मांस पार्थिव एक अवयव है, मतलब धातु है। अस्थि वो केवल पार्थिव नहीं है, लेकिन उसमें भी पृथ्वी प्रधान रूप से है। तो कंडराएं पार्थिव है, स्नायु पार्थिव है। तो इस प्रकार से जो पार्थिव अंश है तो उनका सबका संबंध, हम परस्पर संबंध क्या है हम लोग देख सकते हैं। अब प्रमेय जो व्याधि है उसमें बहुत द्रव श्लेष्मा दोष विशेषा होता है, इसलिए द्रव गुण बढ़ने के कारण धातुएं धीरे धीरे गल जाती हैं एक प्रकार से। तो इसलिए ये पार्थिव अंश जो है वो दुर्बल हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो जो ये प्रकार के पार्थिव ये है उनके ऊपर इसका परिणाम होता है। अब इसलिए जो इन पार्थिव भावों को बल दे, इनके भूताग्नियों के ऊपर काम करके हम इनका परिणमन सुधार सकते हैं एक साथ सबका, क्योंकि इनका परस्पर संबंध क्या है कि ये सारे पार्थिव है।
तो ये समझने के बाद हम लोग एक पृथ्वी के जो परिणमन के में अगर हम लोग सुधार ला सकते हैं पार्थिव अग्नि के द्वारा, तो हम ये सारे अवयवों में एक साथ सुधार ला सकते हैं। तो ये भी भूताग्नियों के विचार का एक उपयोजन है। इंद्रियों की जो उत्पत्ति है वो विशिष्ट महाभूतों के प्रसाद अंश से होती है, ऐसा बताया गया है। तो जैसे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है अष्टांग संग्रह शारीस्थान का, कपरक्त वाहिनाम स्रोतसाम महाभूतानाम च प्रसादात इंद्रियाणि। तो प्रसाद जो है वो सार अंश होता है, ऐसा टीकाओं में कहा गया है। तो सार अंश जो है इन महाभूतों का, उसके कारण इंद्रिय बनते हैं। तो इंद्रियों की जो विकृति है, अब मॉडर्न मेडिसिन में क्या है कि अगर इंद्रियों के अधिष्ठान में भी मतलब ऑडिटरी नर्व डैमेज हो गई, कुछ नहीं हो सकता आगे, लेकिन हाँ, आयुर्वेद के द्वारा उसकी चिकित्सा करके उसमें सुधार आने के उदाहरण हमें मिले हैं, चिकित्सा में मिलते हैं ऐसे उदाहरण। तो इसलिए उसके अधिष्ठान में अब इंद्रियों में अगर विकृति आ जाए तब तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो लेकिन उस स्थिति में भी आयुर्वेद के द्वारा ये विचार जो है कि महाभूतों के प्रसादांश के कारण इंद्रिय उत्पन्न होते हैं, तो हम लोग अगर महाभूतों का प्रसादांश ज्यादा अच्छी तरह से अगर उत्पादन उसका कर सकते हैं तो इंद्रियों का बल बढ़ सकता है या इंद्रियों का कार्य और अच्छा होने लग सकता है। ये अगर हम समझ सकते हैं तो फिर हम लोग इंद्रियों को में भी सुधार ला सकते हैं। तो इसलिए उस विशिष्ट भूताग्नियों का परिणमन ज्यादा अच्छा अगर होगा तो उस भूताग्नि का जो सारांश है वो ज्यादा अच्छी तरह से उत्पन्न होकर फिर उस इंद्रिय को पोषण मिलेगा। ये ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका भूताग्नि के विचार का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। अब धात्वग्नि का हम लोग कुछ विचार करते हैं। तो धात्वग्नि जो है, तो अभी हमने देखा यही कि अयम च भूताग्नि व्यापारः धातुषु अपि अस्ति यथा धातुषु अपि पंचभूतानि सन्ति। तो धातु भी पांचभौतिक है, इसलिए धातु में भी भूताग्नि है। लेकिन अभी जैसा हमने कहा कि उन भूताग्नियों को विशिष्ट नाम दिए गए, रस धात्वग्नि, रक्त धात्वग्नि इत्यादि। तो जिनका नाम उल्लेखित नहीं है वो भूताग्नियों के अंतर्गत समाविष्ट है ही, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से उल्लेख उनका नहीं किया गया। अब ये भी एक बात है कि कई लोग ये बताते हैं कि धात्वग्नि जो है वो यकृत में होते हैं, फिर से ऐसा कहते हैं, या अलग अलग स्थानों पर। ऐसा नहीं, ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ये कहा है, कम से कम ऐसे 10 से 15 संदर्भ है कि जिसमें ये कहा गया है कि धात्वाशय ये धात्वग्नि का स्थान है। अब धात्वाशय क्या है ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो धातुओं के अंतर्गत विशिष्ट आशय यानी विशिष्ट स्पेसेस, विशिष्ट ल्यूमेन्स जो है वो इसका स्थान है। मतलब धातु के हर कण के अंतर्गत, मतलब धातुओं के परमाणु जो है उनके अंतर्गत जो अवकाश है विद्यमान, वहां पे ये धात्वग्नि विद्यमान होते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है और ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसलिए हमें धात्वग्नि कहाँ कहीं और होते शरीर में, उनका स्थान ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। ग्रंथों में अनेकों बार ये कहा गया है कि धात्वाशय ये धात्वग्नियों का स्थान है। जैसे ये कहा गया कि स्वस्थानस्तस्य कायाग्निरंशा धातुषु संस्कृता, ये जो श्लोक है इसकी टीका में हेमाद्रि ने कहा कि धातुषु मतलब धातु में कहा तो धात्वाशयेषु, तो धात्वाशय ये उसका स्थान है। सर्व धात्वग्नया धात्वाशयेषु, धात्वाशय में होते हैं सर्व धात्वग्नि, अपने अपने धात्वाशय में होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे उदाहरण के रूप में कुछ ही संदर्भ लिया, ऐसे बहुत सारे संदर्भ है। धात्वाशयांतर क्लेदो विपक्वा स्वम सोमुष्मणा, तो उसमें मतलब स्वम सोमुष्मणा मतलब जो उसके जो धात्वग्नि है उनके द्वारा उसका पाक होता है, वो कहाँ होते हैं धात्वग्नि? धात्वाशय में। तो स्वम स्वम उष्मणा आत्मीयन आत्मीयन वन्यान, तो इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया यथा रस धात्वाशय अंतरस्था क्लेदा रस धातु उष्मणा विपक्वा कला एका भवति। तो रस धातु उष्मा कहाँ होता है? रस धात्वाशय में। शुक्र धात्वाशय अंतरस्था शुक्र धातु उष्मणा विपक्वा सप्तमी कला भवति। तो शुक्र धातु उष्मा मतलब शुक्र धात्वग्नि कहाँ होता है? शुक्र धातु आशय में। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से बताया गया है। और भी एक ये संदर्भ है कि यह सहारा प्रसादाख्या रस धात्वाशय स्थेन वन्यना भूताग्नि सहायेन पच्यमाना रक्त धातु सारतया परिणमति। अब यहाँ दो बातें स्पष्ट होगी, एक तो रस धात्वग्नि जो है वो रस धातु आशय में होता है, और दूसरा धात्वग्नि भी भूताग्नि सहाय से अपना परिणमन करते हैं। ये इस संदर्भ में अरुण दत्त ने बताया कि रस धात्वाशय स्थेन वन्यना भूताग्नि सहायेन, तो रस धात्वग्नि जो है वो भूताग्नियों की सहायता से जब परिणमन करता है तो रक्त धातु के लिए सार अंश की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये दो श्लोक प्रसिद्ध है कि अष्टांग संग्रह में भी ये श्लोक है और अष्टांग हृदय में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। अष्टांग संग्रह में ये कहा गया कि ये पाचकांशः धातुस्तः तेषां मान्याति तैक्षणिता, तो ये पाचकांशः यहाँ ये कहा गया। और
अष्टांग हृदय में ये कहा गया कि स्वस्थानस्य कायाग्ने रौषा धातु संश्रिता। तो कुछ लोग होते हैं ना कि इनको ये रहता है कि देखो ग्रंथों में कैसे मतलब मत भिन्नता है और कैसे डिस्प्यूट्स है, तो फिर व्हाट्सएप पे लिखकर फैलाना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो ग्रंथों में एक जगह ऐसा कहा है, एक जगह ऐसा कहा है, कितनी मत भिन्नता है, देखो ग्रंथों में कोई एक वाक्यता नहीं है, गलतियां हैं ग्रंथों में वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग समझ सकते हैं कि पित्तांतर्गत अग्नि, ये कंसेप्ट अगर एक बार हमने समझ लिया तो पित्त के भी अंश धातु में है और अग्नि के भी अंश धातु में। तो इसलिए इस श्लोक में यह बताया गया है कि जाठराग्नि के अंश, जाठराग्नि के ही अंश धातु में विद्यमान होते हैं उनको, तो इसलिए पित्त के भी अंश धातु में विद्यमान होंगे, क्योंकि पित्तांतर्गत ही वहां भी अग्नि होगा, इसलिए पित्तांतर्गत अग्नि होगा। तो इसलिए पित्तांतर्गत धात्वग्नि जो है वो भी विशिष्ट पित्तांतर्गत ही होते हैं, लेकिन उन पर जाठराग्नि का प्रभाव पड़ता है। इसलिए धात्वग्नि की चिकित्सा अगर करनी है, व्यवहार में हमें कई ऐसे अवस्थाएं मिलती है, जैसे मान लो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो मांस का परिणमन हमें सुधारना है और उसमें संवतत्व उत्पन्न करना है। शिथिलता उत्पन्न हो गई है, मार्दव, अति मार्दव उत्पन्न हो गया है, उसको हमें संवतत्व उत्पन्न करना है। तो मांस धात्वग्नि को सुधारने के लिए पहले हमें जाठराग्नि ठीक है या नहीं ये देखना चाहिए। तो जाठराग्नि अगर हम लोग पहले ठीक करते हैं तो मांस धात्वग्नि को ठीक करना आसान हो जाएगा। फिर मांस धात्वग्नि पर हम लोग कार्य करेंगे, फिर मांस धात्वग्नि अच्छा काम कर रहा है, फिर मांस धातु को बल देने वाली औषधियां देंगे तो चिकित्सा सफल हो जाएगी। तो इसलिए जठराग्नि का मांस धात्वग्नियों पर जो प्रभाव है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो विशिष्ट आहार से औषध सेवन काल दिए गए उसमें जाठराग्नि के लिए तो विशिष्ट काल दिया गया है, मतलब जो समान काल, मतलब भोजन मध्य में, वही पित्त के लिए काल, वही अग्नि के लिए काल। लेकिन धात्वग्नियों के लिए कोई विशिष्ट काल नहीं दिया है, तो धात्वग्नियों पर काम करने के लिए कौन से विशिष्ट काल में औषध देने चाहिए, तो ऐसा ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से कहा नहीं। लेकिन वृद्ध वैद्य जो यानी जो अनुभवी और जानकार वैद्य है उनका ये कहना है कि भोजन के मध्य में ये जो काल है इसी काल में ये औषध भी देने चाहिए, जिनका हमें भूताग्नियों पर, धात्वग्नियों पर काम चाहिए उनके लिए। तो इसलिए क्योंकि जाठराग्नि का प्रभाव भूताग्नियों पर, भूताग्नि और धात्वग्नियों पर भी पड़ता है, इसलिए। अब ये जो श्लोक है स्वस्थानस्य कायाग्निरंशा धातुषु संश्रिता, इसके ऊपर अनेक टीकाएं उपलब्ध है और वो हर टीका में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। तो सबसे पहले ये दास पंडित की टीका है जो लगभग 10वीं शताब्दी में लिखी गई है। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये मानद्य और तैक्षण्य है, ये तेषाम एवं अग्न्यौषणम अतिदीप्त्या अतितैक्षण्यात धातूनाम क्षय भवति, न तो दीप्त मात्रेण धातु क्षय किंतु अतिदीप्त्या। तो उन्होंने ये बताया, मतलब ये बताया कि जो धात्वग्नि मांद्य के कारण विकृत वृद्धि होती है और धात्वग्नि की अतिदीप्ति के कारण क्षय होता है। तो ये जो है, लेकिन दीप्ति और क्षय ये प्रक्रिया है, जैसे जाठराग्नि प्रदीप्त होता है, फिर हम आहार का सेवन करते हैं, फिर आहार का पचन होने के बाद जाठराग्नि कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से किंचित मंद बन जाता है, लेकिन ये मंद इतना नहीं है कि विकृति कह सके, ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। तो ये एक विशिष्ट लय में, एक विशिष्ट रिदमेटिकली ये जाठराग्नि के स्तर पर उसका मांद्य और तैक्षण्य ये चलता रहता है। इसी प्रकार से धात्वग्नियों के स्तर पर भी नॉर्मल रेंज में उसका मांद्य और तैक्षण्य ये चलता रहता है। तो इसलिए ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विकृति कब उत्पन्न होती है, जब अतिदीप्ति और अतिसाद उत्पन्न होता है। ये इसलिए सादातिदीप्तिभ्याम, इसमें जो अति शब्द है ये दोनों में उपयोग करना है, अतिसाद और अतिदीप्ति। तो अतिसाद और अतिदीप्ति होती है, तो अतिसाद से विकृत वृद्धि होती है और अतिदीप्ति से क्षय होता है धातुओं का। ये दास पंडित टीका में बताया गया। वैसे पूरी दास पंडित टीका जो है वह आयुर्वेद के सिद्धांत समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बातें दी गई है, जैसे जो प्रभाव और विचित्र प्रत्यारब्ध, इसमें एग्जैक्टली क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये दास पंडित टीका में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण है उसमें। अब इसी प्रकार से ये परमेश्वर कृत टीका जो है उसमें यह बताया गया कि जाठराग्ने वायु विक्षिप्ता ये अंशा, तो जाठराग्नि के अंश ही धातुओं में विद्यमान होता है, धात्वग्नि के जाठराग्नि धातुओं पर प्रभाव डालता है और ये कैसे वायु के माध्यम से यह अंश जाठराग्नि का प्रभाव धात्वग्नियों पर कैसे पड़ता है, तो वायु के माध्यम से पड़ता है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण संदर्भ। मैं पूरी टीका के विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन कुछ बातों को मैंने हाईलाइट किया है। और दूसरा ये बताया गया है कि
आहार द्रव्य शक्ती वशेन अग्निनाम मान्यात एक्ष्ण्यात च वृद्धि क्षय वाच्यो। तो विशिष्ट आहार द्रव्यों में ये शक्ति होती है कि ये धात्वग्नियों को मंद बनाए या धात्वग्नियों की दीप्ति करे। ये विशिष्ट आहार द्रव्यों में ये शक्ति होती है। तो ये भी इस टीका में स्पष्ट किया गया। तो इसलिए हम कौन से आहार का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं उसका धात्वग्नियों पर भी प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और इसी प्रकार से अष्टांग हृदय पर इंदु टीका जो है, अष्टांग संग्रह की इंदु टीका तो सबको पता है, लेकिन अष्टांग हृदय पर जो इंदु टीका है उसका वो भी कोट्टायम वैद्य सारथी प्रेस कोट्टायम वहां से उपलब्ध थी, अब शायद आउट ऑफ प्रिंट हो गई होगी। तो जिनको अभी भी है तो वहां संपर्क करें, शायद कुछ कॉपीज उपलब्ध हो। तो उसमें भी ये बताया गया है कि तत्र अन्य आहार द्रव्य शक्ति वशात, तो आहार द्रव्यों की विशिष्ट शक्ति के कारण भी धात्वग्नियों का साध और दीप्ति हो सकती है, ये यहाँ बताया गया। तो धात्वग्नि भी पित्तांतर्गत है, इसलिए धात्वग्नि जैसे हमने कहा कि अग्नि पित्तोष्म रूप है, इसी प्रकार से धात्वग्नि पित्त विशेष और उष्मा इसमें है। तो ये धात्वग्नि जो है इसके ऊपर मेरी पत्नी जो है वैद्य माधवीलता दीक्षित, उनका एक थीसिस था, कंसेप्ट ऑफ धातु एंड धात्वग्नि विद स्पेशल रेफरेंस टू अस्थि धातु एंड अस्थ्यग्नि। तो इसमें बहुत विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी गई है, वो जामनगर में सबमिट किया गया था ये। तो अब ये बात वैसे मैंने अभी और भी दूसरे संदर्भ जोड़ दिए, मैंने सिर्फ उसी को उद्धृत नहीं किया है। तो इसमें विशिष्ट पित्त का अंश जो होता है उसके अंतर्गत ये धात्वग्नि होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो ये धात्वग्नि जो है मतलब जो आहार का परिणमन होता है, तो कोई भी हमें धातुओं का अच्छा निर्माण करना है अगर हमें, तो धातुओं के पोषकांश होने चाहिए एक तो, और उन पोषकांशों का योग्य प्रकार से परिणमन होना चाहिए। तो ये परिणमन अच्छा होने के लिए कौन से फैक्टर्स आवश्यक है, तो 3 फैक्टर्स सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो इसलिए ये चरक सूत्र स्थान 28 उसके पहले 2 तो होता है कि अथा तो ये अध्याय व्याख्यास्यामा और इतिहासमा भगवान रहे, तो उसके बाद में जो सबसे पहला उल्लेख है उसमें यह कहा गया है कि यथा स्वेन उष्मण सम्यक पच्यमानम, तो अनुपहत सर्व धातुष्म मारुत स्रोता। तो इसलिए अनुपहत सर्व धातुष्म मारुत स्रोता, तो 3 फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए कि धातुओं के पोषकांश होने चाहिए, धातुओं के पोषकांश होने चाहिए, और धातुओं के पोषकांशों का धातु में अगर योग्य परिणमन होना है तो 3 फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है धात्वग्नि, दूसरा धातु स्रोतस, और तीसरा वायु यानी व्यान वायु, क्योंकि व्यान वायु के संदर्भ में यह कहा गया कि व्यान वायु धातुओं का व्यूहन करता है। और व्यूहन की टीका में चक्रपाणी टीका में यह कहा गया है कि व्यूहन मतलब वहन और संरचना, मतलब जो उसके न्यूट्रिएंट्स है उनको उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनको वहां पर ले जाना धातुओं के पास, और फिर धातुओं में परिणमन करके उसकी रचना करना विशिष्ट प्रकार की, ये व्यान वायु का कार्य बताया गया है। तो इसलिए हमें धातुओं का परिणमन अगर सही प्रकार से होना है तो धात्वग्नि, धातु स्रोतस और व्यान वायु, इन 3 फैक्टर्स को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो अब धात्वग्नियों का चिकित्सा में बहुत ही ज्यादा उपयोग है। तो धातुओं की चिकित्सा अगर करनी है तो धातुओं का परिणमन सुधारना है तो धात्वग्नि का विचार करना आवश्यक है। और ये धात्वग्नि का विचार करके हम धातुओं में फिजियोलॉजिकल यानी क्रियात्मक बदलाव तो ला ही सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम लोग रचनात्मक यानी एनाटॉमिकल चेंजेस भी ला सकते हैं, ऐसा अनुभव मिलता है। तो इतना ये विचार महत्वपूर्ण है। तो विशेष रूप से चिरकारी जो व्याधि होते हैं उसमें क्या होता है कि दोष प्रकोप करके लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार दोष प्रकोप करके लक्षण उत्पन्न करके कहाँ रहे, तो धातुओं के मतलब जो दूष्य है उनके आधार पर। तो दूष्यों में विशेष रूप से धातु होते हैं और धातुओं से घटित अवयव होते हैं। तो यहाँ पे ये बार बार कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका कारण ये होता है कि धातु दुर्बल है और इसलिए धातु उनको अलाउ कर रहे हैं, धातु उनको रोक नहीं पा रहे हैं, और इसलिए दोष उनमें उनके आश्रय से बार बार व्याधि उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ दोषों की चिकित्सा ये आवश्यक, ये काफी नहीं है। तो यहाँ पे धातुओं का बल बढ़ाना ये भी आवश्यक है। तो विद्यार्थियों के लिए हम लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे दहशतवादियों को मार गिराना ये तो बहुत ही आवश्यक है, ये तो सही है, लेकिन ये दहशतवादी बार बार वहां पे ये अपना काम सफलता से कैसे करते हैं? कुछ स्थानिक लोग भी उनसे मिले हुए हैं, तो स्थानिक लोग उनसे क्यों मिलते हैं इसका भी विचार करना आवश्यक है। तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको बल देना ये भी आवश्यक है। तो ये दहशतवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये धातुओं का बल जब बढ़ता है तो धातुओं के आश्रय से बार बार व्याधि उत्पन्न हो जाना बंद हो जाएगा। इसलिए धातुओं का बल अगर बढ़ाना है तो धात्वग्नि के माध्यम से धातुओं का परिणमन सुधार कर
हम लोग धातुओं का बल बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो व्याधि क्रॉनिक हमारे पास जो डिसीजेस लेकर आते हैं पेशेंट, उसमें उस दोष पर काम करने वाले औषध हम लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसी प्रकार से उस धातु पर जिसका गामित्व है ऐसे औषधों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, या उस धातु के धातुअग्नि को सुधारने वाले औषधों को हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसके कारण हम लोग विशिष्ट बदलाव ला सकते हैं। उसके उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं। तो अपुनर्भव और रसायन चिकित्सा भी आवश्यक है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के रूप में। इसमें भी धात्वग्नियों का विचार करना आवश्यक है। तो जैसा हमने कहा कि अनुपात धातुष्म मारक स्रोतांशी, तो रसायन भी, तो कुछ रसायन ऐसे होते हैं कि जो धातुओं को सीधा पोषण दे रहे हैं, जैसे यष्टि मधु है, यष्टि मधु धातुओं को पोषण दे रही है, शतावरी धातुओं को पोषण दे रही है। लेकिन कुछ रसायन ऐसे है कि जो सीधा धातुओं को पोषण नहीं देते, लेकिन धातुओं के परिणमन को सुधारने के कारण गुणवान धातुओं की उत्पत्ति करते हैं। तो परिणमन सुधारने के लिए कुछ ऐसे रसायन होते हैं कि जो धात्वग्नियों को प्रदीप्त करते हैं, जैसे जो भल्लातक है, ये धात्वग्नि प्रदीप्तन करेगा। भल्लातक का शुक्र पर भी कार्य है, तो अनेक धातुओं पर उसका काम है। तो इस प्रकार से धात्वग्नि दीपन करने वाले द्रव्य होते हैं। कुछ ऐसे भृंगराज है, भृंगराज में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि धातुओं को पोषण दे सके। वो भृंगराज को अगर इकट्ठा करके उसका सुखाया जाए, तो पहले जो भृंगराज का जितना विस्तार दिखता था, पाउडर होने के बाद बहुत छोटा सा बन जाता है वो। तो भृंगराज में पोषकांश नहीं है, लेकिन भृंगराज स्रोतों को शुद्ध बनाता है और पाचन और शोषण की प्रक्रिया को सुधारता है। इसलिए भृंगराज रसायन कार्य कर सकता है। तो इसलिए रसायन एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, यह हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए अनेक ऐसे रसायन है कि जो धात्वग्नियों के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। तो विकृत वृद्धि धात्वग्नि मांद्य से उत्पन्न होती है, यह हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और इसी का हम लोग अनेक जगह उपयोग कर सकते हैं। अभी इस प्रेजेंटेशन में मैंने कैंसर के केसेस के उदाहरण नहीं रखे, क्योंकि मैंने 2 बार कैंसर के ऊपर इसमें इस ज्ञान गंगा में व्याख्यान दिया हुआ है, और वो जो आरएवी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर उपलब्ध है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो नए विद्यार्थी है वो वहां पर जाकर उसको सुन सकते हैं कि कैंसर को कैसे विचार किया जाए। इसके ऊपर मेरे जो विचार, मतलब मुझे जो जितना समझ में आया वो उन लेक्चर्स में मैंने प्रस्तुत किया था, तो वहां समझ सकते हैं। लेकिन कैंसर में भी ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे एक वैद्य राम सिंह गोहिल राजकोट के पास, वो कैंसर की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा कैंसर और आयुर्वेद। उसमें भी उन्होंने धात्वग्नि के ऊपर बल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि धात्वग्नि मांद्य के कारण विकृत वृद्धि होती है, इस प्रकार से अनेक कैंसर में स्थिति पाई जाती है। तो वहां पे भी धात्वग्नि के विचारों का उल्लेख है। तो वहां उस धात्वग्नि को हम लोग अगर प्रदीप्त करें और धातुओं के निर्माण में अगर सुधार लाए, तो विकृत वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। अब विशिष्ट अवयव में भी जब विकृति उत्पन्न हो जाती है, कि मान लो टंग कैंसर है, जिह्वा में विकृति उत्पन्न हो गई है, या और भी कहीं, तो उसमें विशिष्ट अवयव में तो कपशोणित मांसानाम सारा जिह्वा पर जाए थे। तो अवयवों की उत्पत्ति जो है उसका विचार करके उसमें कौन से धातु है, तो उन धातुओं के धात्वग्नियों पर हम लोग अगर कार्य करेंगे, तो जिह्वा के स्ट्रक्चर में परिणमन आ जाएगा, जिह्वा के स्थिति में बदलाव आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बदलाव ला सकते हैं अलग अलग अवयव में। तो हर अवयव का, तो सीकेडी के पेशेंट्स में वृक्कों में शोष पाया जाता है। तो वृक्क जो है वो रक्त और मेद प्रसाद से बनते हैं। तो हम लोग रक्त और मेद का सारांश अगर ज्यादा अच्छी तरह से उत्पन्न कर सके, उनके धात्वग्नियों को ठीक करके सारांश को अगर अच्छा उत्पन्न कर सके, तो वृक्क का कार्य उसमें सुधार आ सकता है। ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसलिए अनेक व्याधियों में उन धातुओं का और उन अवयवों का और उन अवयवों का कौन से धातुओं से संबंध है, इसके आधार पर विचार करके उस धात्वग्नि के माध्यम से अगर हम कार्य करते हैं, तो हम लोग बहुत ही चमत्कार जैसे, मतलब लोगों को लगता है ऐसा, हमारी दृष्टि से वो शास्त्रीय है। चमत्कार शास्त्रीय नहीं होता है, तो हमारी दृष्टि से वो शास्त्रीय विचार है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो धात्वग्नि भूताग्नियों पर काम करने वाले ऐसे कौन से द्रव्य है, तो इसलिए हम लोग भाव प्रकाश निघंटु से ही हमें कई बड़ी जानकारी मिलती है। लेकिन एक द्रव्य गुण का बहुत अच्छा पुस्तक जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो वैद्य फड़के शास्त्री, उन्होंने लिखा हुआ सिंपल संस्कृत में लिखा हुआ एक पुस्तक है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो उसमें भी उन्होंने बताया, तो उसके आधार पर मैंने भाव प्रकाश निघंटु में जो जो द्रव्य है, उन सारे द्रव्यों में से जितने द्रव्य जिन धात्वग्नियों पर और जिन भूताग्नियों पर काम करते हैं, उसका एक लिस्ट बनाया मैंने, और उसका प्रैक्टिस में बड़ा उपयोग होता है। तो उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए, ऐसे उदाहरण दिए कि जिसको हम लोग जल्दी से सोचते नहीं। जैसे पलाश है, वो शुक्र धात्वग्नि पर काम करता है, इसलिए हमें शुक्र पर काम करने वाले अनेक योगों में पलाश का उसमें सहायता ली जाती है, ऐसा मिलता है। रसायन में भी शुक्र पर काम करने के लिए पलाश का वहां पे उपयोग किया गया है।
अम्ल की रसायन के साथ उसमें पलाश का उपयोग किया गया, ऐसा हमने देखा जाता है। पाठा रक्त धात्वग्नि पर काम करके रक्त में जो ग्रथित रक्त का विलयन करता है, और इसलिए हमें ये मिलता है कि जो अर्श में शूल है वो तुरंत कम हो जाता है, इसलिए पाठा अंति अर्शसामृजम ये कहा गया है। तो इस प्रकार से अनेक पिप्पली कुछ द्रव्य है कि जो अनेक धात्वग्नियों पर एक साथ काम करते हैं, जैसे पिप्पली रस धात्वग्नि, रक्त धात्वग्नि और शुक्र धात्वग्नि पर काम करता है। तो इस प्रकार से हमें एक साथ ये काम चाहिए अलग अलग धात्वग्नि के ऊपर, तो ऐसे भी द्रव्य उपलब्ध है। तो ये जैसे वनस्पतिज द्रव्य अलग अलग हमें उपलब्ध है, इसी प्रकार से रसशास्त्रीय द्रव्य भी हमें उपलब्ध है। और रसशास्त्रीय द्रव्य जो है वो और ज्यादा बलवान वीर्यवान होने के कारण ये जो धात्वग्नि दीपन करना है या धात्वग्नि के स्तर पर पाचन करना है, ये और तेजी से और जल्दी हो जाएगा, इसलिए इनका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये विद्यार्थी याद रखे कि रस धात्वग्नि पर काम करने के लिए हमें यशद और खरपर इनका उपयोग करना चाहिए। रक्त धातु पर ये उदाहरण दिया मैंने, ऐसा नहीं कि और द्रव्य नहीं है, ये विशेष द्रव्य जो बताया मैंने। रक्त धात्वग्नि पर काम करने के लिए कासिस और गंधक इनका विशेष रूप से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। मांस धात्वग्नि पर काम करने के लिए ताम्र, मेदो धात्वग्नि पर काम करने के लिए शिलाजतु, अस्थि पर काम करने के लिए नाग, मज्जा पर काम करने के लिए रौप्य और शुक्र पर काम करने के लिए वंग और सुवर्ण। ये उदाहरण के रूप में मैंने लिखे, ऐसे और भी द्रव्य है, लेकिन ये द्रव्य जो है उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। इनका हम लोग चिकित्सा में जो उपयोग करते हैं, और जो यहाँ पे विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं वो देखते हैं कि इन द्रव्यों का हम लोग कैसे उन धात्वग्नियों के लिए उपयोग करते हैं। अब मैं कुछ रुग्णों में इन संकल्पनाओं का कैसे उपयोग किया गया था उसके उदाहरण प्रस्तुत करके फिर अपनी जो आज की प्रस्तुति है वो पूरी करूंगा। तो एक रुग्णा, एक जो बच्ची थी, उसकी माँ को भी मतलब हाइपोथायरॉइडिज्म डिटेक्ट हुआ था, और वो अपनी चिकित्सा ले रही थी, मॉडर्न ट्रीटमेंट, और इस बच्ची को भी हाइपोथायरॉइडिज्म डिटेक्ट हुआ। ये 2011 में आई थी मेरे पास। तो लक्षण क्या थे? तो वारंवार प्रतिशय, और उस समय नासा प्रतिना मतलब नाक बंद होने की संवेदना होना, मल प्रवृत्ति विबद्ध, ज्यादातर तृतीय नहीं मतलब एक एक दिन छोड़कर मल प्रवृत्ति होना, और शकृतः पिंडिकोद्वेष्ट, पुरुष का अवरोध होता है तो पिंडिकोद्वेष्टन, इसलिए यहाँ पे बार बार पिंडिकोद्वेष्टन भी हो रहा था। और उत्साह हानि विशेष रूप से प्रातः, तो ये रस दुष्टि के कारण इस प्रकार से हो रहा था। और श्रम, क्लम, आलस्य, कार्श, तो कार्श भी रस धात्वग्नि से संबंधित है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अजीर्ण और इसके कारण रसदुष्टि के कारण विकृत कफ की उत्पत्ति का कारण बार बार प्रतिशय, और रस धात्वग्नि की विकृति और रस की विकृति के कारण कार्श, आलस्य वगैरह इसके जैसे उत्साहानि जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और बार बार ज्वर भी आता था पहले, ज्वर के कारण आक्षेपक, तो ये भी रसदुष्टि से संबंधित है क्योंकि ज्वर का भी रस से संबंधित है। अब ये आक्षेपक के लिए आधुनिक चिकित्सा 5 साल से उसकी चल रही थी। परीक्षण में अपान की नाड़ी, क्योंकि मल प्रवर्तन ठीक से नहीं हो रहा था, जीवा श्वेताभ उपलेप, उधर में सभी जगह आत्मात ध्वनि, लेकिन विशेष रूप से अब उधर में आत्मात ध्वनि, वो कहाँ पे आत्मात ध्वनि मिलता है इसके आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि क्या विकृति है। तो इसमें वाम कुक्षी वंक्षण में विशेष रूप से आत्मात ध्वनि मिल रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि पुरुष का प्रवर्तन ठीक से नहीं हो रहा है, और इसलिए पुरुष संचित हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे विशिष्ट आत्मात ध्वनि मिल रहा है। और नासारशम यानी पॉलिप्स दोनों वो बार बार प्रतिष्ठा होने के कारण बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, और वो आयुर्वेद की दवाई से ही ठीक होते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ, उसके लिए किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑपरेशन करने के बाद भी बड़े, वो 3 बार ऑपरेशन करने के बाद चौथी बार भी वो पॉलिप्स उत्पन्न हो गए, बार बार डीएनएस उत्पन्न हो जाता है ऑपरेशन करने के बाद भी, ऐसे वो पेशेंट मिलते हैं। इसलिए उसमें हमें आयुर्वेद की चिकित्सा से ही वो ठीक होते हैं, ये रोगी को विश्वास दिलाना चाहिए। अब आधुनिक जो परीक्षण है उसमें क्या देखा गया कि उसमें ये देखा गया कि टीएसएच उसका जो था वो ग्रेटर देन 150, मतलब आगे काउंट ही नहीं किया उन्होंने, इतना ज्यादा हाई था। तो इसलिए इतना बड़ा तो हाइपोथायरॉइडिज्म, और इसके साथ साथ एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज जो है वो भी बढ़े हुए मिले, वो और थायराइड पेरोक्साइड एंटीबॉडी ये भी मिला, वो बड़ी मात्रा में, मतलब जो जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा है। अब इसको मैंने जो पैथोलॉजिस्ट है उनसे मैंने कंफर्म किया है कि ये हाशिमोटो डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब मैं तो मॉडर्न मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कंफर्म किया है। तो इसलिए ये इस प्रकार से भी ये केस थी, मतलब इसमें हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ साथ हाशिमोटो डिसऑर्डर्स
और उसके आप लोग अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता, उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमने ये चिकित्सा शुरू की। यहाँ 90वें सूत शेखर जो है, एक सूत शेखर में परिवर्तित पाठ है, बदलाव कोई नहीं किया गया, उसमें और ज्यादा कुछ द्रव्य मिलाए गए। तो ये रसधात्मक निधिपन के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ साथ ओजक क्षय के काफी लक्षण थे, इसलिए लक्ष्मी विलास और कुक्कुट नखी हमने दिया है। और साथ साथ यहाँ पे आम पाचन करने के लिए भी तिक्तरस के द्रव्यों का उपयोग किया है। तो त्रिफला कीटमारी यवानी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जैसा उसका नाम है कृमि अगर है तो उसका ज्यादा अच्छा उपयोग होता है, इसलिए उसका उपयोग किया गया है। और शुरू में कृमि के लक्षण थे, इसलिए कृमिकोटर कम्पिल्लक का उपयोग किया गया है। तो ये सब करने के बाद उसमें मतलब सिम्टोमेटिकली तो सुधार आ गया। तो फिर बदलाव करके हमने जो क्षार थे या बहुत कड़वे द्रव्य थे, तिक्तरस के द्रव्य थे, उनको हटाकर अब हमने 90वें सूत शेखर, लक्ष्मी विलास और कुटन के साथ त्रिवंग ऐड किया कि जिससे उसका मतलब ओज बढ़े, शुक्र, सार्वदेहिक शुक्र और ओज बढ़े, और जिसके कारण मानसिक अवस्था भी उसका अवसाद दूर हो। ये हमने किया। अब मैंने उसके सारे फॉलोअप्स यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अब उन्होंने क्या किया कि वो डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने ग्रेटर देन 150 तो 1 महीने में ही वापस रिपोर्ट निकाला। तो 1 महीने के अंदर ही वो रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि TSH 53 आ गया ग्रेटर देन 150 से। फिर जैसे जैसे आगे रिपोर्ट निकाले तो उसमें वो कम होता गया, और वो फिर TSH 168, और यही नहीं वो मेंटेन हो गया। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि लंबे समय तक ये मेंटेन्ड है। और इसके बाद में हमने सारी चिकित्सा धीरे धीरे करके बंद करके सिर्फ ताप्यादिलोह और गुडुची ये उसको जारी रखा हमने। तो इसके कारण उसका TSH नॉर्मल रहने लगा, और वो दवाइयां, बाकी दवाइयां सारी बंद करने के बाद भी उसका नॉर्मल है। और ये एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो अब डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, तब बहुत ज्यादा बड़े हुए थे। और थायराइड पेरोक्साइड एंटीबॉडी जो है वो भी जो 660 से नीचे होना चाहिए, तब 160 के आसपास था, वो कम हो गया। तो इसलिए ये सिम्टोमेटिकली भी सुधार हो गया और रिपोर्ट्स भी इसके पूरे नॉर्मल आ गए। अब एक और उदाहरण देखते हैं, मतलब इसमें हमने वो थायराइड है तो उसको क्या मतलब थायराइड कम करने वाले कौन से द्रव्य, ऐसा नहीं सोचा हमने। ये सोचा कि अजीर्ण है, रसदुष्टि है, उसको कैसे ठीक करना है, और उसके कारण स्वास्थ्य जैसे उत्पन्न हो गया तो रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गए। अब जो एक केस कि एक 36 साल की शिक्षिका, मूल रूप से वो पहले हमारे पास इसके लिए आती थी कि बार बार प्रतिष्ठाय होना, कंठोपलेप, अम्लिका उत्कंठदा। अब ये जो इस प्रकार के सिम्टम्स हमें मिलते हैं, तो इसमें हमें ऐसे समझना चाहिए कि अग्नि मंद है और इसके कारण विदग्धाजीर्ण बार बार हो रहा है, इसलिए अम्ल पित्त जैसे लक्षण, अम्लिका उत्कंठदा, क्योंकि अन्न पड़ा रहता है ज्यादा देर तक, तो उसमें फिर फर्मेंटेशन जैसी प्रोसेस होकर अम्लत्व आ जाता है, तो इसलिए ये है। इसके साथ साथ अब ये जब अजीर्ण बना रहता है तो रसदुष्टि होती है, इसके कारण विकृत कफ उत्पन्न होकर प्रतिष्ठाय, कंठोपलेप वगैरह इस प्रकार के लक्षण है। अब जब ये लंबे समय तक रहती है रसदुष्टि, तो पांडुत्व उत्पन्न हो जाता है, इसलिए भ्रम, आयासेन श्वास, कटिपादशूल, ये सब पांडु के लक्षण है। जी हाँ, कटिपादशूल ये पांडु के लक्षणों में भी है, इस प्रकार के दिया हुआ, तो इसलिए ये पांडु के लक्षण है। और फिर क्या होता है कि ये रक्त में लीन हो जाते हैं दोष आगे जाकर, तो इसलिए शिरशूल बार बार होना ये उत्पन्न हो जाता है। तो हमारी दृष्टि से इसका विश्लेषण ये है, और इसके लिए हम लोग चिकित्सा दे रहे थे पहले, इसलिए सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल चुका था, तो उन्होंने चिकित्सा बंद कर दी। उसके बाद में वो फिर आ गई हमारे पास एक आधुनिक परीक्षण लेकर 2012 में। तो उसमें उनका क्या था कि उनका GERD था, और उनका ये पाया गया था कि प्रोलैक्टिन जो है वो 2012 में जब वो वापस आ गई तो लक्षण ये थे कि स्तन्य प्रवर्तन होने लगा था। अब उनका बच्चा जो है वो लगभग 12 साल का था, मतलब ऐसा नहीं कि स्तन्य प्रवर्तन का समय है योग्य, तो उनका स्तन्य प्रवर्तन हो रहा था, और उनका प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो इसलिए ये प्रोलैक्टिन लेवल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 230 हो गया था उनका। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गई थी, उन्होंने कहा था थोड़ी देर रुकते, नहीं तो हम लोग आगे का विचार करेंगे, आप तो मुझे जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप जो है वही दे दीजिए आप। लेकिन उनका हमने जब चिकित्सा शुरू की तो हमने तो चिकित्सा में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि उनका पचन सुधारना, रसदुष्टि ठीक करना, यही हमें करना था। और वो करने के बाद क्या हुआ, तो हमने ये चिकित्सा दी उनको।
नव्य सूचक रस सिंदूर दिया था, क्योंकि ओजक्षय के लक्षण उनमें काफी थे, इसलिए ओज बढ़ाने के लिए और वात की गति को नियंत्रित करने के लिए रस सिंदूर दिया हुआ था। तो अब ऐसा करते करते जब फिर उन्होंने रिपोर्ट निकाला तो रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आ गया प्रोलैक्टिन का। तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो कहा नहीं था, आपने उसके लिए भी दवाई दी थी क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमारी दवाइयां जो है वो हमने तो उसी के लिए दी थी, लेकिन वो दवाई उसके ऊपर भी काम करती है। क्योंकि वो मैंने बताया ना कि वैद्य श्रीराम जी शर्मा थे, उन्होंने अपने भाषण में एक बार कहा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन डू नॉट हैव साइड इफेक्ट्स बट दे डू हैव साइड बेनिफिट्स। तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत बैठ गई है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हमने उसके लिए विशेष कोई विचार किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने रसदुष्टि और दूर की और रस धात्वग्नि जब ठीक हो गया तो विकृत स्तन्य जो उसके विकृत उपधातु के रूप में विकृत वृद्धि हो गई थी उसकी, वो अपने आप ठीक हो गई। अब और एक केस हम लोग देखेंगे और रुकेंगे। तो एक 26 साल की तब थी एक रुग्णा, जो उसका हिस्ट्री ये सब थी पहले की। तो उसने जो ये हिस्ट्री दी, मतलब इसका ये तात्पर्य था कि उसके ये जो टैकीकार्डिया और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया था, उसके कारण उसका जब एक्सीडेंट हो गया तो उसको उन्होंने सर्जरी परफॉर्म नहीं की, उसका एक्सीडेंट हो गया। 2010 में उसका एक्सीडेंट हो गया पुणे में। मतलब वो पुणे शहर का ट्रैफिक आप लोग देखेंगे, हर शहर में वही है, घर घर की कहानी है वो। लेकिन वो एक जगह जा रही थी और वो नो एंट्री था, तो इसलिए उसको अपेक्षा नहीं थी कि इधर इस साइड से व्हीकल आएगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये तो पुणे का ट्रैफिक है। तो अचानक एक रिक्शा वहां से घुस आई और उसको उड़ा दिया। तो वो उसका पड़ गई और फ्रैक्चर हो गया उसके राइट हिप में, और बाकी जगह इतनी ज्यादा इंजरी नहीं थी, लेकिन राइट हिप में तो डायग्नोस्ड विद इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ राइट फीमर नेक सब कैपिटल नीडिंग अर्जेंट सर्जरी। लेकिन जो उसकी पुरानी हिस्ट्री थी उसके आधार पर उन्होंने तुरंत सर्जरी नहीं की, प्रोफिलैक्टिक एस्पिरिन वगैरह देकर फिर बाद में उसकी उन्होंने सर्जरी की। तो ये एक बहुत बड़ा पुणे का हॉस्पिटल है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने जो अपना उस समय योग्य था उसने अपना काम किया। एक बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट, तो ये उसके हालत थी, उन्होंने ये फिक्सेशन करके ये सर्जरी करके ये किया। अब ये करने के बाद मेरे पास जब वो आई तो 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसमें बिल्कुल ही हीलिंग नहीं हो रहा था। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो हेड ऑफ फीमर है उसको हमें मतलब सर्जरी करके रिप्लेस करना पड़ेगा, ज्यादातर यंग लड़कियों में इसकी ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन 3 महीने हो गए लेकिन बिल्कुल ही इसमें हीलिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को प्रोस्थेसिस वो लगाकर वो ऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब हमारे पास जब आई तो हालत क्या थी कि साधारण मतलब विथ सपोर्ट भी वो चल नहीं सकती थी, कटिवंक्षण शूल, और अब पड़ी रही थी। इसलिए क्या हुआ था कि उसका पचन बिगड़ गया था, इसलिए वारंवार आधमान, अम्लिका, रुत्कंठदाह, क्षुधा आधिक्य था, लेकिन ये मिथ्या क्षुधा थी। विकृत पित्त बढ़ने के कारण मिथ्या क्षुधा ग्रंथों में बताई गई है, वो इसमें थी। और मल प्रवृत्ति विबद्ध थी क्योंकि साम मल था। और पिता भस्म वर्ण उपलेप, मतलब पित्त प्रधान साम दोष बड़ी मात्रा में शरीर में विद्यमान है, लंबे समय से आजीर्ण चल रहा है, ये उससे समझ में आ रहा था। गंड शोथ, तो इसलिए ये भी आजीर्ण सूचक है। हस्तपश्चा अवभास, तो ये भी रस धातु के आश्रय से साम पित्त है, इसका सूचक है। तो हमारी दृष्टि से इसका पचन ठीक नहीं है, इसलिए उसका जाठराग्नि ठीक नहीं है, इसलिए धात्वग्नि ठीक नहीं है, इसलिए वो धातु का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा है, ये हम समझ सकते हैं हमारी दृष्टि से। तो इसलिए हमने क्या किया, अब धातुओं का बल भी हमें नहीं घटाना है, इसलिए हमने जो पाचन के लिए द्रव्य सिलेक्ट किए वो पाठा धमासा, ये कॉम्बिनेशन जो है ये ग्रहणी का कार्य सुधारता है, इसलिए उसको दिया है। और उसके साथ तिक्तरस चाहिए था क्योंकि पित्त शमन करना था, लेकिन वो पटोल हमने सिलेक्ट किया है क्योंकि पटोल मधुर विपाकी है, इसलिए उसको सिलेक्ट किया हुआ है। और ये समान काल में दिया है जो पित्त का काल है उसमें, तो इसलिए पाचक पित्त और जाठराग्नि इनका काम इससे सुधार हो जाएगा। और साथ साथ ताप्यादि लोह, जिसमें शिलाजतु के माध्यम से मेद से अस्थि का परिणमन सुधर जाएगा और अस्थि धात्वग्नि का काम अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ ये काम जल्दी से हो और ओज सार्वधिक शुक्र और ओज बढ़े, कि सार्वधिक शुक्र बढ़ने के कारण धातुओं का निर्माण ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए रस सिंदूर उसमें ऐड किया। और अस्थि मज्जा पाचक जो अस्थि के परिणमन को मदद करता है, तो ये व्यान उदान काल में दिया है क्योंकि हमने देखा कि व्यान वायु धातुओं के परिणमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देने से अब जो 3 महीने से वो पड़ी हुई थी और बिल्कुल हीलिंग नहीं हो रहा था, तो आफ्टर 21 डेज फिर ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट्स के द्वारा असेस किया गया और उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर इज ऑलमोस्ट हील्ड, और उसको सलाह दी कि तो अब तुम चलना शुरू कर दो। तो उसने चलना शुरू कर दिया, तो फिर धीरे धीरे करके
आगे वो पूरी तरह से विदाउट सपोर्ट भी चलना शुरू किया। तो 21 दिन के बाद उसकी हालत क्या थी, अब आप देख सकते हैं। पिछला जो आपने फ्रेम देखा था उससे तुलना करके देखिए कि इसमें काफी हीलिंग, 21 दिन में इतना हीलिंग हो चुका है। तो ये आपने देखा कि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट चल रही थी उसमें 3 महीने में भी हीलिंग नहीं होता, क्योंकि वहां जाठराग्नि और धात्वग्नियों का विचार नहीं किया गया था। क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या करते हैं कि कैल्शियम या इस प्रकार से सिर्फ अस्थि को बल देने वाली चिकित्सा देते हैं, लेकिन उनके पास धात्वग्नि का विचार नहीं है। तो हमारे पास जो है, अब 2011 में फिर उसने वही बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट हीलिंग हो चुका है, और उन्होंने कहा कि हिप हैज बिकम एज गुड एज न्यू। अब तुम्हें कोई आगे चिकित्सा की आवश्यकता नहीं। अब उसके बाद में आखिरी में वो कैसे हुआ, तो उन्होंने वो स्क्रू वगैरह हटा दिए। अब ये आखिर में हम देख सकते हैं कि ये स्थिति बन गई उसकी। तो जो मतलब इस प्रकार से आयुर्वेद के विचार के आधार पर हम लोग ने जो चिकित्सा की, उसके कारण 21 दिन में ही काफी सुधार आ गया, और बाद में पूरी तरह से ये ठीक हो गई, जो हीलिंग नहीं हो रहा था, और कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार मैंने धातु और धात्वग्नि, भूताग्नि, इनके बारे में कुछ विशिष्ट विचार मैंने आज प्रस्तुत किए, और उसके आधार पर कुछ रोगियों में उसका किस तरह से उपयोग किया गया उसके कुछ उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए। तो मुझे आशा है कि ये विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। और यहाँ पे आपने सबने शांतिपूर्वक इसे सुना, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए ये आज आमंत्रित किया। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request all the participants, if anyone is having any doubt, then please ask. आप लोग अपना माइक ऑन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दीक्षित जी, सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने बहुत ही विहंगम रूप से इस अग्नियों का वर्णन किया है। ये तो बिल्कुल भूतोना भविष्यति रहा जो आपने वर्णन किया है, इतना बहुत ही अद्भुत किया है। मैं बहुत इससे अभिभूत हूँ। हमारे छात्रों को मैं समझता हूँ ये पहली बार ऐसा व्याख्यान सुनने को मिला है। अब इसमें कोई प्रश्न लगाने का कोई औचित्य नहीं है, ये कोई ऐसा आपने प्रश्न छोड़ा नहीं है। कोई आपने रोग में और धातुओं को बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं किसी प्रकार का। किंतु अगर छात्र चाहे, हमारे शिष्य चाहे, तो अपना शंका समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई दीक्षित जी, अभिभूत हो गए आपके व्याख्यान से। धन्यवाद सर, धन्यवाद, प्रणाम सर जी। वो हचिनोमोटो का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह फिर से समझाएंगे? नहीं, वो उनका डायग्नोसिस था हाशिमोटो डिसऑर्डर और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये था उनका, उसका मॉडर्न डायग्नोसिस। लेकिन मैं कर रहा हूँ आपको, उसके टाइम पे थोड़ा नेट इश्यू हो गया था, हाँ, थोड़ा अच्छा। तो हाँ, लेकिन उसमें हिस्ट्री क्या थी कि बार बार प्रतिष्ठाएं होना, कंठों पे गले में कफ अटकता था, ज्वर आता था। तो ये हमारी दृष्टि से अजीर्ण और रसधात्वग्नि मांद्य के लक्षण थे। रसधात्वग्नि मांद्य के कारण विकृत कफ उत्पन्न हो रहा है। तो हमने जो दवाइयां दी वो रसधात्वग्नि को ठीक करने के लिए, और साथ साथ उसका थोड़ा सा ये था, दुर्बल थी और ओज कम था, तो वो बढ़ाने के लिए हमने चिकित्सा दी। तो इसलिए उसमें मतलब पित्त के लक्षण थे, इसलिए नव्य सूत शिखर दिया। लघुमाली देवसंत देते रसधात्वग्नि को बढ़ाने के लिए ज्यादातर बार, लेकिन इस बार वो दिया था। और उसके साथ साथ लक्ष्मी विलास और कुक्कुट नखी, जो वात की गति को नियंत्रित करता है, और मेध्य है, तो वो दिया था। तो उसके कारण, और आम पाचन, तो उसके कारण उसके जो मतलब थायराइड के लेवल्स है वो ग्रेटर देन 150 से धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, और फिर नॉर्मल आ गया, और नॉर्मल मेंटेन रहा 1 साल 1.5 साल हमने ऑब्जर्व किया। उसके बाद में हमने ताप्या दिलो और गुड़ुची लेने के लिए कहा, और चिकित्सा बंद कर दी हमने। यानी आपने शुरुआत की लाक्षणिक चिकित्सा? हाँ, लाक्षणिक मतलब हमारी दृष्टि से रसधात्वग्नि दीपन और आम पाचन यही किया, तो उसी से वो उसके लक्षणों में भी सुधार आ गया और उसके रिपोर्ट भी नॉर्मल आने लगे। यूजुअली हमारा कॉन्सेप्ट कैसा रहना सर हाइचिनोमेटिन का करने के लिए? नहीं, एक जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, तो उसके ऊपर हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे ट्रीट करना है, इसको
इसको समझने के लिए मैंने एक लेक्चर दिया है जो YouTube पर अपलोडेड है, तो वो उसमें आप उसमें सुन सकते हैं। आप उसमें डिटेल में मैंने बताया उसके बारे में। तो ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, तो आप सर्च करेंगे मेरे नाम से था वो जो था हाइपोथायरॉयडिज्म का लेक्चर, तो वो आपको YouTube पर मिल जाएगा, वो है उसमें। मतलब मैंने अभी देखा नहीं, 2-3 साल पहले देखा, तब तक लगभग 12,000 व्यूज उसको मिल चुके थे, तो लोगों को उपयोगी लगा वो काफी। नमस्कार गुरुजी, वैद्या प्राजक्ता देवल बोलती है। मैं वैद्या प्राजक्ता देवल बात कर रही हूँ। मुझे एक प्रश्न ये ऐसा पूछना था कि मल शोधन के लिए अपान काल में वरा आप देते हैं ना, तो तब उसके साथ धमासा आप देते हैं, तो उसके पीछे क्या विचार है? हाँ 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 धमासा के ऊपर भी मैंने एक पूरा लेक्चर दिया था एक बार बेलगांव में, जब प्रसाद सर वहाँ पे प्रिंसिपल थे। तो धमासा जो है वो एक बहुत अद्भुत द्रव्य है, वो वात की गति को नियंत्रित करता है, क्योंकि अतिसार की चिकित्सा में भी वो मिलता है, और जहाँ बहुत ज्यादा विबंध होता है, तो ऐसे अर्श में जहाँ ग्रथित मल होता है, वहां भी ग्रंथों में धमासा का उपयोग कहा गया है। फिर जो प्रमेह के इसमें भी हमें धमासा का उल्लेख मिलता है, और मूत्राघात में भी धमासा का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि वो वात की गति को नियंत्रित करके ये जो प्रवर्तन है उसको नियंत्रित करता है, तो इसलिए वात की गति पर नियंत्रण आ जाता है। तो आजकल हम लोगों को ये भी एक सोचना है कि जो आजकल ये चलता है कि जीआई मोटिलिटी की बात लोग करते हैं, तो हमारे पास इसका विचार पहले से है, और इसलिए उसमें से भी हम लोग वात की गति नियंत्रित करके आंत्रों की गति को नियंत्रित करने के लिए धमासा का उपयोग कर सकते हैं। ऊपर से वो धमासा पित्त शामक भी है, और वो वात के धातुक्षयजन्य वात में भी उपयोगी है और मार्गावरोधजन्य वात में भी उपयोगी है। तो इन सारी दृष्टियों से धमासा का उपयोग करते हैं। धन्यवाद सर। सर, आम पाचन के लिए अगर हमें औषधि देनी है तो उसका कोई काल होता है? हाँ, तो आम पाचन जो है वो अग्नि और पित्तांतर्गत अग्नि है ना, तो इसलिए उसका जो काल है वो समान काल है, मतलब मध्य भोजन। तो भोजन के बीच में दिया जाए तो ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं उसके। हम लोग अगर मतलब भोजन से पहले दे, या कभी भी भोजन से थोड़ा पहले, आधा घंटा पहले वो ले रहा है मान लो, इससे भोजन के मध्य में ज्यादा पाचन के लिए अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर ऐसा हम लोग करके देखा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ रोगियों में ऐसा दे और कुछ रोगियों में ऐसा दे, तो कंपेयर कर सकते हैं आपकी इनमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी सर 100 ग्रास या प्रथम कवल भुक्त अगर दें तो ज्यादा बेटर है? हाँ, वो सग्रास वो प्राणवायु पर काम करने के लिए कहा गया है, और प्रथम कवल भोज्य ये हिंगवष्टक के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है। लेकिन इन जनरल जब पाचन देना है तो वो मध्य भोजन, मतलब आधा खाना होने के बाद उसको खाते समय ही, मतलब थाली में वो लेकर ही बैठना है, और आधा खाने के बाद वो दवाई खानी है, और फिर आधा खाना बाकी का बचा खाना है, तो वो ज्यादा अच्छा परिणाम दिखाता है। नमस्कार सर, एक आपने धातु का बल बढ़ाने के लिए व्यान वायु के बारे में बताया था, उसको थोड़ा सा समझा दीजिए सर। हाँ, मतलब धातुओं का बल बढ़ाना है तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सिर्फ पोषण देना काफी है। तो अगर धातु अग्नि ठीक से काम कर रहा है, स्रोतोरोध नहीं है कहीं, तो हम लोग पोषण देंगे तो वो धातुओं का बल बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा ये भी है कि तो अगर पोषण देना है तो उसको व्यान वायु ये धातुओं का व्यूहन करता है, ऐसा बताया गया है। इसलिए व्यान वायु के लिए काम है, कार्य काल है भोजन के बाद, तो इसलिए भोजन के बाद वो औषधि देंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। वैसे रसायन के लिए, रसायन क्या होता है, वो बलवान होते हैं और बड़ी मात्रा में दिए जाते हैं, इसलिए वो सुबह रिक्त कोष्ठ में दिए जाते हैं, तो और उसका पूरा पचन होने के बाद आहार दिया जाता है, तो उनकी बात अलग है। लेकिन हम लोग जब अल्प मात्रा में दे रहे हैं तो वो खाने के बाद में जो व्यान वायु की सहायता से वो धातुओं तक जल्दी पहुंच जाता है वो पोषण। और अगर हमें धात्वग्नि दीपन करना है, इसलिए धातुओं की वृद्धि नहीं हो रही है, तो फिर हमें समान काल में, मतलब मध्य भोजन, भोजन के मध्य में
औषधि देनी है तो उससे जाठराग्नि भी प्रदीप्त होगा और धात्वग्नि भी प्रदीप्त होकर वो धातु का परिणमन ज्यादा अच्छा होने लगेगा। थैंक यू सर। सर डाइट एडवाइस एज पर अग्निदृष्टि टाइप। हाँ, डाइट एडवाइस, हाँ तो वो तो हम लोग सभी वैद्य मतलब यही एक महत्वपूर्ण बात होती है कि अग्नि मतलब धात्वग्नि दृष्टि है, ऐसा आपका कहना है या जाठराग्नि? धात्वग्नि एज पर टाइप ऑफ धात्वग्नि। धात्वग्नि नहीं तो कुछ ऐसे द्रव्य ये है ना, द्रव्य की जो विशिष्ट धातु को बल देते हैं तो उसके अनुसार वो उस धातु पर काम करने वाला है तो उसका पाचन ठीक हो जाए, ऐसा हम तो ऐसा एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। अभी आहार का तो मैंने इस प्रकार से लिस्ट पूरा बनाया नहीं है, मतलब वो क्योंकि क्या होता है कि वो मेरी मिसेस वो ज्यादा उसका डिटेल काम देखती है सब, इसलिए अभी मैं उसके उदाहरण बाद में बात शेयर करूंगा चाहिए तो, कि कौन से धातु पर विशिष्ट आहार कौन सा काम करेगा। इस प्रकार से हमें एक लिस्ट बनाना चाहिए। हेलो सर, एवेस्कुलर नेक्रोसिस में धात्वग्नि के अनुसार कैसे चिकित्सा करेंगे? कहाँ पर? एवेस्कुलर नेक्रोसिस। हाँ हाँ हाँ, एवेस्कुलर नेक्रोसिस तो उसमें भी वही है कि उसमें भी हमें देखना है कि वो उसका निर्माण नहीं हो रहा है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो वो अस्थि धात्वग्नि ठीक से काम नहीं कर रहा है, और कई बार हमें ऐसा मिलता है कि वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस का हम लोग अगर एक्सरे वगैरह देखते हैं ना तो ऐसा मिलता है कि बहुत जो अनइवन लेयर्स ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं ऐसा दिखाई देता है। मतलब जिस प्रकार से प्राकृत निर्माण होना चाहिए उसके बदले में विकृत इस प्रकार के लेयर्स एक दूसरे के ऊपर है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये होता है कई बार कि व्यूहन उसका ठीक नहीं है, मतलब व्यान वायु काम ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए ये व्यूहन उसकी रचना ठीक नहीं हो रही है वहां पे, तो तब वो व्यान वायु की हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसलिए भोजन के बाद में जो काल है उसमें औषधियां देकर व्यान वायु की गति को नियंत्रित करना है और उसका काम ठीक से होना चाहिए। वरना अस्थि धात्वग्नि का दीपन करने के लिए गुग्गुलु शिलाजतु वगैरह युक्त औषधियां जो मेद से अस्थि का परिणमन सुधारती हैं, ऐसी औषधियां चंद्रप्रभा, इस प्रकार से वो दे सकते हैं हम लोग। और बाकी फिर अस्थि को पोषण नहीं मिल रहा है तो पोषण देना है, फिर अस्थि को पोषण देने वाली औषधियां तो उसमें भी हमारे पास कुछ है कि सीधा पोषण देती है, कुछ अस्थि धात्वग्नि को सुधार करके भी पोषण देती है। जैसे ताप्यादिलो जो है वो मेद से अस्थि का परिणमन भी सुधारता है और अस्थि को बल भी देता है साथ में। नाग जो है वो नाग अस्थि का बल बढ़ाता है और वात का शमन करता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की औषधियां हो सकती हैं जो हम लोग इसके लिए दे सकते हैं। तो उसमें हमें ये तय करना है कि उसका अस्थि को पोषण आवश्यक है या उसका परिणमन सुधारना है, उसके अनुसार ये चिकित्सा होगी। उसमें एक बात की बस्ती का भी उसमें बहुत अच्छा उपयोग होता है क्योंकि बस्ती से वात की गति का नियमन हो जाता है, तो इसलिए बस्ती के कारण भी उसमें बहुत अच्छा सुधार आता है और वो है भी अपान के कार्य क्षेत्र में, इसलिए उसमें ज्यादा जल्दी असर हो जाता है। इसलिए बस्ती देने से भी मतलब वात की गति नियंत्रित होकर उसमें अच्छे परिणाम मिल जाते हैं हमें। सर आपने सही बोल दिया। मैंने एवीएस वेस्कुलर नेक्रोसिस एवीएन जो है क्षीर बस्ती प्रयोग किया और सक्सेसफुली ट्रीट हो गया। ये सही है। सर doses of medicines used in these three cases, for example, is it चूर्ण फॉर्म और घनवटी फॉर्म, धमासा एक्सेट्रा? हाँ, धमासा है उसका, ये क्या होता है, धमासा मतलब जो चूर्ण द्रव्य है उनका वैसे तो ग्रंथोक्त डोज होता है 1 कर्ष, लेकिन इतना आजकल लोगों को टॉलरेट नहीं होता, तो हम लोग डिवाइडेड डोसेस में 3-3 ग्राम 2-3 बार वगैरह इस तरह से देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं, तो उसमें धमासा की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इसके अनुसार 250 मिलीग्राम या मैक्सिमम 500 मिलीग्राम इसमें होती है क्वांटिटी, क्योंकि उसके साथ और भी द्रव्य है। केवल धमासा दे रहे हैं तो हम लोग और ज्यादा भी दे सकते हैं। बाकी ये ताप्यादिलो है तो 125-250 मिलीग्राम ज्यादा से ज्यादा ऐसा देते हैं। भस्म है तो उनके अपने कम डोज है। सर धमासा क्या चीज है? क्या आपने, मैंने धन्वयास, प्रॉपर्ली फॉलो। धन्वयास
धनवयास आपने सुना होगा ना, धनवयास का नाम, तो दुरालभा, तो उसका नाम धमासा हिंदी में, और मराठी में भी है। तो धनवयास या दुरालभा वो है धमासा मतलब। सर ये धातु अग्नि और इसका ना वो थोड़ा आप वो ये आता है ना, केदार कुल्ले न्याय खले खपत न्याय, उसी का हिसाब से कुछ बोल सकते हैं? हाँ हाँ, वो मतलब क्या है कि ये हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो केदारी कुल्यान है मतलब बड़े प्रवाह से छोटे प्रवाह में इस तरह से जाता है ना, तो वो बड़े वेसल्स से छोटे वेसल्स में इस प्रकार से वो पहुंचते पहुंचते कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी तक पहुंचता है। उसके बाद में वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के रूप में पड़ा रहता है। तो वो उसको हम लोग एक दृष्टि से खले कह सकते हैं। तो वहां सारे धातुओं के पोषकांश है आहार रस में, लेकिन आजू बाजू में जो सेल्स है वो अपना अपना पोषकांश उससे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से वो फिर वो उसके धातुओं के नहीं उसका परिणमन करते हैं। तो ये उसका संबंध है इन न्यायों का। तो जो परिणमन होता है वो फिर क्षीरदधी न्याय वहां पे अप्लाई होगा वहां पे, और जो बाकी पोषण मिलता है वहां पे केदारी कुल्य न्याय से वो पोषण उनको प्राप्त होगा। नमस्ते सर। हाँ। सर आचार्य चरक ने संतर्पण जन्य विकार और अपतर्पण जन्य विकार दोनों में अरोचक का वर्णन किया है, तो ऐसी कंडीशन में अरोचक की चिकित्सा हमको अग्नि के द्वारा कैसे करनी चाहिए? अरोचक क्या है कि जो मन से भी संबंधित है उसमें। तो कभी कभी क्या होता है कि कार्श दौर्बल्य के कारण मनो अवसाद के कारण भी अरोचक उत्पन्न हो जाता है, और बाकी ये पचन ठीक नहीं है इसलिए अन्न के बारे में अरुचि उत्पन्न होगी क्योंकि अजीर्ण है, ऐसा ऐसा भी होता है। तो उसके अनुसार उसकी अलग अलग चिकित्सा हो जाएगी फिर। तो इसलिए उसमें रुचि, इसलिए मन को भी अच्छे लगे ऐसे द्रव्य उसमें, रुचिकर द्रव्य उसमें उपयोग करते हैं ना हम लोग, तो जो मन को भी अच्छे लगे ऐसा ऐसे होने चाहिए। तो इसलिए मन का भी उसमें संबंध होता है। इसलिए तो इसलिए कार्श में ऐसे द्रव्य ज्यादा होने चाहिए। आम पाचन तो होने ही चाहिए, लेकिन जो मन को अच्छे लगे ऐसे ज्यादा होने चाहिए। तो अपदर्पण जन्य इसमें ज्यादा फायदा होगा। और बाकी भी इन जनरल हम लोग जो औषध सिलेक्ट करने वाले हैं वो द्रव्य खुद क्या कर रहे हैं, संतर्पण या अपदर्पण, इसके अनुसार हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये तालिसादी जो है ना वो आरोचक अधिकार में दिया हुआ है, और एक यवान्यादि चूर्ण है। अब ये आया है राजयक्ष्मा अधिकार में, तो राजयक्ष्मा में कितना बड़ा धातुक्षय होता है हमें पता है। इसलिए ये आम पाचन करने वाले लेकिन धातुक्षय भी नहीं करते हैं, इस प्रकार के ये कल्प है। तो हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये उस अधिकार में आए हुए हैं इस प्रकार से। धन्यवाद। सर आम्लवातात्मक समानकाली औषध जास्त उपयोगी पडेल का? नहीं, आमवात में अगर आम उत्पत्ति को हमें रोकना है तो समान काल में दे सकते हैं, तो अग्नि अच्छा होगा। और दूसरा ये है कि समान वायु जो है वो स्वेदव स्रोतस का नियंत्रण भी करता है। तो इसलिए स्वेदव स्रोतस अगर ठीक हो जाता है तो भी आमवात के पेशेंट्स को पेन में रिलीफ मिल जाता है, या जकड़ जो जाता है उसमें स्तंभ में भी रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि स्तंभ गौरव शूलग्नम स्वेदनम स्वेद कारकम है ना, तो स्वेद का प्रवर्तन होने लगता है तो स्तंभ गौरव और शूल कम हो जाता है। तो इस दृष्टि से समान काल में उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आम का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, तो आम और कफ का बहुत निकट संबंध होता है, इसलिए प्रातः सायम हम लोग देते हैं उसको शुरू में औषधियां। तो प्रातः सायम देने से वो आम पाचन ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि रिक्त कोष्ठ पर वो पूरा पाचन का अपना काम करता है, इसलिए प्रातः सायम में देते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा महावात विध्वंस देना है या और कोई भी शूल प्रशमन के लिए योगराज गुग्गुल देना है तो प्रातः सायम में देना ज्यादा अच्छा रहेगा। सर शुक्र धातु के लिए कौन सा प्रशस्त रहेगा?
शुक्र धात्वग्नि के लिए ना? जी हाँ। शुक्र धात्वग्नि के लिए, हाँ। तो रसशास्त्रीय द्रव्य में जैसा मैंने कहा कि वंग, यही मतलब समझने का आधार यही कि वंग शुक्र को बढ़ाता कैसे है। वंग तो खुद है कषाय तिक्त रस वाला, और उसकी मात्रा इतनी सी है, तो वो शुक्र जो मधुर है, स्निग्ध है, पिच्छल है, उसको ये बढ़ाता कैसे है। तो ये वंग जो है वो शुक्र का परिणमन सुधारता है, इसलिए आहार से जो शुक्र का परिणमन है वो ज्यादा अच्छी तरह से होने लगता है, इसलिए वंग शुक्र धात्वग्नि को सुधारता है। हाँ, और उसके अलावा सुवर्ण है। औषधि सेवन काल का, हाँ, औषध सेवन काल का शुक्र काल। धातु का दृष्टि है, शुक्र हाँ। धातु अग्नि का दृष्टि है, उसमें औषध सेवन काल कौन सा चाहिए, कौन सा देना? ये हम लोग देते हैं, मतलब जो चंद्र प्रभा वगैरह जो मतलब आगे, मतलब पहले धातु जो है वो अगर शुक्र का पोषण रुद्ध कर रहे हैं तो फिर समान काल में देते हैं, कि जिसके कारण धात्वग्निदीपन, और बाकी शुक्र को बढ़ाने के लिए व्यान उदान काल में। तो ये वंग को व्यान काल में, मतलब भोजन के बाद देते हैं। और बाकी जो और अनेक द्रव्य है, जैसे वृद्ध दारुक है ना, उदाहरण के रूप में वृद्ध दारुक है, इक्षुरक है, ये द्रव्य आम पाचन करते हुए भी वृक्ष है। तो ऐसे द्रव्य जो है वो शुक्र धात्वग्नि के स्तर पर पाचन करने के लिए या शुक्र धात्वग्नि का दीपन करने के लिए, जो मतलब वनस्पतिज द्रव्य भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका उपयोग किया जा सकता है। नमस्कार सर. हशीमोटोचा जो पेशंट होता, 150 TSH लेवल होती 150 पेक्षा जास्त, त्या पेशंटमध्ये ॲलोपॅथीची काही ट्रीटमेंट सुरू होती का? आणि जर नहीं। सुरू असेल तर ती आपण बंद केली होती का? नहीं, उसमें मॉडर्न मेडिसिन स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने, मतलब अभी अभी डिटेक्ट हुआ था, तो उनको बहुत मतलब क्योंकि उनकी ये जो लड़की थी उसकी जो माँ थी वो लंबे समय से वो मॉडर्न मेडिसिन खा रही थी, मतलब उन्होंने रोते हुए कहा कि अब मैंने तो जो भुगतना है वो भुगत लिया, मेरी बच्ची को नहीं भुगतना। आप क्यों भुगत रही है? आपके भी मॉडर्न मेडिसिन बंद की जा सकती है धीरे धीरे हमारी चिकित्सा के द्वारा। तो उसको, ये बच्ची को नहीं शुरू किया गया था, तो इसलिए ये पूरी तरह से आयुर्वेद के ट्रीटमेंट पर ही उसका नॉर्मल भी आ गया और मेंटेन भी रह गया। बाद में फिर हमने धीरे धीरे बंद कर दी दवाइयाँ। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे पेशेंट हो चुके हैं हाइपोथायराइडिज्म के, कि जिनका हम लोग अगर मॉडर्न मेडिसिन चल रही है तो ग्रेजुअली उसको कम करते हैं, एकदम तुरंत नहीं करते। और जो अगर मॉडर्न मेडिसिन शुरू ही नहीं किया गया है, तो जैसा हमने देखा कि 150 भी था तब भी हमने केवल आयुर्वेद की दवाइयों पर ही उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर मॉडर्न मेडिसिन ऑलरेडी शुरू नहीं हुआ है तो हम लोग सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर मॉडर्न मेडिसिन ऑलरेडी शुरू है तो क्रमशः विरमित नरा के तत्व के अनुसार उसको थोड़ा थोड़ा डोज कम करते हैं हम, साथ साथ हमारी दवाइयाँ देते हैं और फिर उसको धीरे धीरे बंद कर देते हैं मॉडर्न मेडिसिन। और फिर हमारी दवाइयों पर उसको मेंटेन करते हैं। फिर हमारे तो द्रव्य रसायन होते हैं, तो इसलिए वो धातुओं का निर्माण सुधार कर बाद में कुछ पेशेंट्स में हमारी चिकित्सा भी धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। धन्यवाद सर. सर, कॅन्सर मध्ये विषय, उदाहरणार्थ प्रोस्टेट कॅन्सर मध्ये मेटास्टेसिस वगैरह होतात, तर त्यावेळेस मग कोणत्या धातूंचा? हिंदी में पूछिए तो बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। सर, कैंसर में स्पेसिफिकली प्रोस्टेट कैंसर जैसे कैंसर में जब मेटास्टेसिस वगैरह होता है तब कौन से धात्वग्नि का कैसे विचार करना है, क्योंकि मेटास्टेसिस तो बहुत से ऑर्गन्स में होता है, या फिर तो जैसे ये होता है ना कि उसको उन धातुओं की उत्पत्ति कैसे हो रही है उसको समझना है। अब ये जो ये है उसको आयुर्वेद के अंतर्गत कैसे समझा जाए, ये भी एक विचार है। लेकिन लोग उसको ज्यादातर उसको अष्ठीला करके उसको समझते हैं, लेकिन यही है कि उसके कार्य के आधार पर वो शुक्र में सहायक होने वाले जो स्राव है उसका उत्पन्न करता है। तो शुक्र में सहायक अवयव है और घटित है, मांस से घटित है, तो इसलिए इस तरह से हमें उसको सोच सकते हैं। तो अब ये मेटास्टेसिस जो होते हैं उनमें भी यही होता है कि अब जैसे रीनल कैंसर है और उसका मेटास्टेसिस बोन्स में हो रहा है, तो ये रक्त मेद प्रसादात, तो मेद है, बाद में अस्थि से संबंध आ गया। इस प्रकार से हम लोग उनका संबंध समझ सकते हैं मेटास्टेसिस का।
और बाकी ज्यादातर कॉमन क्या होता है कि सभी अवयवों की उत्पत्ति में रक्त ही एक बहुत कॉमन फैक्टर है, इसलिए रक्त के माध्यम से ये हमारी दृष्टि से ऐसा कहना चाहिए कि मेटास्टेसिस में रक्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सर उसमें पीएसए का संबंध हम किस धातु अग्नि से जोड़ सकते हैं? नहीं, पीएसए मतलब वही वो उस अवयव का, तो पीएसए उसको जानने का एक तरीका है, मतलब कि कितना उसका कार्य कैसे चल रहा है, लेकिन उस अवयव को हम लोग आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे समझते हैं। तो अभी मैंने कहा कि मांस घटित है और उसका जो उसमें से जो स्राव उत्पन्न होते हैं वो शुक्र की, मतलब वो हमारे इसमें रेतस कहते हैं, टोटल इजैकुलेट, तो उसमें से एक पार्ट वो होता है ना उसका स्राव, तो इसलिए उस दृष्टि से भी उसको शुक्र से संबंधित भी समझ सकते हैं उसको, तो इसलिए शुक्र मांस इनसे उनको संबंधित समझना चाहिए। इसके लिए ये एक पारिषद्य शब्दार्थ शारीरम करके पुस्तक उपलब्ध है वैद्यनाथ के द्वारा, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि ये ऐसे अलग अलग जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है उसको आयुर्वेद के अनुसार क्या कहना चाहिए इसका निश्चित ही करके उन्होंने उसमें डिस्कस भी किया है, और आखिर में एक टेबल भी दिया हुआ है उन्होंने कि किसको क्या कहना चाहिए, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए वैद्यनाथ के द्वारा प्रकाशित है, बहुत ज्यादा महंगा भी बुक नहीं है, वो उपलब्ध है। गुरुजी फिर एक बार पुस्तक का नाम बताइए। पारिषद्य शब्दार्थ शारीरम, तो एक जो शारीर के संबंध में तृतीय शास्त्र चर्चा परिषद करके हुई थी, तो उसमें पूरे भारत के शारीर के विद्वान उसमें सम्मिलित हुए थे तब, तो उसका एक रिपोर्ट बनाया गया कि उसमें उसका संकलन किया गया कि उन्होंने क्या क्या मत प्रदर्शित किए, तो बड़ा अच्छा है। उसमें हर अवयव के बारे में सारे ग्रंथों के, टीकाओं के और उसके साथ साथ उपनिषदों के, वेदों के भी रेफरेंसेस लिए गए हैं, और उसके आधार पर निश्चित ही किए अलग अलग जो संज्ञाएं आती है शारीर में उनकी निश्चित ही करने का प्रयास किया गया है उसमें, तो पारिषद्य शब्दार्थ शारीरम करके। बाकी फिर जो एक पुरुष विचय करके ग्रंथ है वैद्य विजय ठाकर जी द्वारा लिखा हुआ, उसमें भी हमें इसमें अच्छी सहायता मिल सकती है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा आयुर्वेदीय क्रिया शारीर वैद्य रणजीत राय देसाई, तो उसमें भी हम लोगों को काफी अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, क्योंकि उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे संदर्भों का संकलन किया है। मुझे लगता है कि मतलब अगर और भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर आप पर्सनली कांटेक्ट करिए मुझे, क्योंकि काफी कुछ लोगों को देर हो रही होगी, अभी काफी देर से हम लोग ये चल रहा है हमारा। On behalf of organizing committee, I would like to thank Professor Vaidya Upender Dikshit sir for delivering such enriching lecture. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to extend my sincere gratitude to our mentor Vaidya Devendra Trigunaji, President GBRAB, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our Director Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Koteta sir, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars who, with their presence and active contribution, make this webinar a successful one. Thank you and namaskar.